ओके गाइस, सो वेलकम बैक। और आज हम लोग पढ़ेंगे okay, so let's start with the discussion. And today we are going to discuss on another type of recommendation system, which is content based recommendation system. ठीक है, तो आज कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम से स्टार्ट करते हैं. एंड फॉर दैट, व्हाट इज कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम? तो हम लोगों ने देखा था, वी हैव सीन what exactly is the content based recommendation system. In that, what we used to do is we try to enter a keyword. Just let me share the screen. Hope the screen is visible now. Okay, so now in content based recommendation system, what we do is we enter a keyword, and based on that keyword we try to do a search on all the available items. Like you are working on a movies system, so in the movies system, if you are entering Harry Potter, so all the movies related to Harry Potter, part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, all should pop up, right? Now in Harry Potter as well, थोड़ा सा उसके आगे भी कुछ लिखा रहेगा आपके पास मूवी में डिस्क्रिप्शन, एंड देन यू विल बी हैविंग मूवी डिस्क्रिप्शन एट द बैक ऑफ इट एज वेल, but still our system should be able to recognize Harry Potter. And at the same time, after Harry Potter, it should recommend all the movies which are having the word Harry in it. It should recommend the movie which is going to have Potter word in it, and so on and so forth. So that is the recommendation system, where what we do based on the search criteria that we have entered. तो जो भी search criteria आप enter करते हैं, based on that search criteria, it recommends the things, right? So recommendation happens based on the search criteria that you have given, right? और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो for that we used to use a technique called NLP, that is natural language processing, right? तो इस पूरी प्रोसेस के लिए हम लोग NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करते हैं टू सर्च अ स्ट्रिंग. ऑलराइट, नाउ NLP कैसे यूज होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इट, जस्ट अ बेसिक लेवल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, राइट? सो द वेरी फर्स्ट टर्म इन NLP which we have to understand is tokenization. What is tokenization? Like if I have written a word, I love pizza. If this is the word, now in this word, can somebody suggest me, is it a positive word, is it a negative word, or is it a neutral word? Anybody? Is it Sir, a positive है नहीं? Why positive? I think it is neutral. Neutral. Okay. Why neutral? Why positive? क्योंकि कोई positive सर लव है तो Due to this word love, we can say पॉजिटिव that it is a positive word, या right? तो अगर मैं इसमें से ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, तो भी हम लोग कह सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव बात हो रही है. हाँ सर. करेक्ट. तो सर. किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है? क्या यहाँ पर आई इंपॉर्टेंट है? क्या यहाँ पे लव इंपॉर्टेंट है? क्या यहाँ पिज्जा इंपॉर्टेंट है? तो तीनों में से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? पिज्जा सर. ऑफ कोर्स लव, because we are detecting positive, negative and neutral things, right? At the same time, of course, pizza भी important रहेगा, because we are talking about, I mean, this is the subject about which we are talking about, right? तो love भी रहेगा, and then pizza is also important, जहाँ पे हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि love तो हम लोग करते हैं, but किसको? तो pizza को, right? So these two words are very important. अच्छा, यहाँ पे I important है क्या किसी भी चीज में? सर शायद तक होगा. ओके. तो अगर हमारे पास कोई बड़ा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, लाइक लेट्स से दिस इज द सेंटेंस वी आर हैविंग नाउ, इस पूरे सेंटेंस के अंदर कैन यू टेल मी दैट विच आर द वर्ड विच आर सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग? किसके बारे में बात की जा रही है? अगर आपको ये पता करना है तो कौन कौन से वर्ड है जो मे बी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं? separating a piece of text into smaller units. सॉरी, Separating a piece of into smaller units.
smaller units, piece of text, Text. and Sir, tokens. tokens. Okay, Tokenization. maybe process as well. Process. बाकी और कुछ जरूरी है? If we talk about this word, it is a, of, a, into, of, called. So ये जो वर्ड्स है ये कुछ काम के हैं क्या? ये तो आपको यहाँ भी दिख जाएंगे. सर काम के है सर, तभी तो सर वो मीनिंगफुल एक सेंटेंस बना रहे हैं. नहीं, सेंटेंस नहीं, आपको समझना है कि किसके बारे में बात हो रही है. द टॉपिक अबाउट विच वी आर टॉकिंग. तो क्या ये वर्ड यहाँ पे उस टॉपिक के लिए जरूरी है? क्या आपको ये पता करना है कि ये लाइन किसके बारे में है? तो उसके लिए इट इज और ए इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अगर यहाँ से मैंने बता दिया इट इज और ए, और यहाँ पे भी आप देखोगे इट और इज यहाँ पे भी है, हो सकता है कहीं ना कहीं ए भी होता है. तो क्या ये वर्ड यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पर हमारे पास है, क्या ये इंपॉर्टेंट होते? यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी है ये. No, sir. तो ये वर्ड है क्या एक्चुअली? सो दीज वर्ड्स आर एक्चुअली द कनेक्टर्स. वो कनेक्टर्स हैं जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करने में, एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट देने में जरूर काम आते हैं. These sentences or these words are actually used to complete the sentence and to make it a more sensible, but it does not tells anything about what we are talking about. तो ये हमको ये नहीं बताते कि किसके बारे में बात हो रही है, but it actually completes the statement. So ये जो है ये ऐसे words हैं, these are the words who are used to complete the sentence, right? और ये हर तरह के sentence में आपको दिख जाएंगे, हर paragraph में दिख जाएंगे, but they are not so important. They are just to complete the sentence. Right? So these kind of words are called as stop words. Stop words. Right? ये stop words होते हैं. Now, I love pizza. Pizza has 3 toppings. Domino's makes very good pizza. Something of that sort. अभी इस पूरे सेंटेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, ये पूरा जो सेंटेंस हम लोग, ये जो पूरा पैराग्राफ हमने लिया है, इस पूरे पैराग्राफ में कैन यू टेल मी कि हु आर द वर्ड हु आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग? किसके बारे में बात हो रही है उसको पहचानना है सिर्फ. तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? Love pizza, Domino's. Pizza Domino's. किसके बारे में बात हो रही है? आई एम टॉकिंग अबाउट टॉपिक मॉडलिंग. अभी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछ रहा मैं ये पूछ रहा हूँ किसके बारे में बात हो रही है. तो पिज्जा के बारे में बात हो रही है, तो कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? So topping. Toppings. Yes, topping is very much related to pizza. Domino's. Pizza itself Domino's. and Domino's and this pizza. तो यही वर्ड इंपॉर्टेंट है. क्या मैं बाकी सब निकाल देता हूँ तो भी क्या मैं पहचान सकता हूँ कि ये जो अगर मुझे सिर्फ ये 5-6 वर्ड दिए जाएं तो भी मैं क्या पहचान सकता हूँ कि पिज्जा के बारे में बात हो रही है? बाकी सारे वर्ड निकाल दिए मैंने और सिर्फ मैं ये 5 वर्ड मुझे मिलते हैं, तो क्या इनके बेसिस पे पहचान सकता हूँ कि ये पिज्जा के बारे में बात हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट. तो कोई भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है उसका मेन आइडिया क्या होता है? बिकॉज उसके अंदर हम लोगों को चीजें आइडेंटिफाई करना होती है. सिमिलरली चलो अभी मैं इसको बैक टू द बिजनेस कि मान लो यहाँ पे कॉल सेंटर एजेंट है, मैं एक कॉल सेंटर एजेंट हूँ एंड आई हैव गॉट अ कॉल फ्रॉम माय कस्टमर एंड माय कस्टमर इज सेइंग दैट माय बिल साइकिल ऑफ माय credit card is 6th of January, but I didn't receive it. My credit limit is reached. My credit limit has reached and got a penalty of XYZ. अभी ये जो है इसके अंदर से कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है? कैन यू टेल मी टू आइडेंटिफाई विच इज अबाउट व्हाट इट इज बीइंग टॉकिंग? क्योंकि अभी यहाँ पे आइडिया क्या है कि आई एम द कॉल सेंटर एजेंट और मुझे ये पूरा जो भी कन्वर्सेशन है वो कस्टमर से सुनना है एंड बेस्ड ऑन लिसनिंग द स्टेटमेंट ही इज टॉकिंग अबाउट आई हैव टू क्लासिफाई इट. मतलब मुझे पर्टिकुलर क्लास को आइडेंटिफाई करना है या पर्टिकुलर टीम को असाइन करना है, वेदर इट बिलोंग्स टू क्रेडिट कार्ड टीम
whether it belongs to personal banking team, whether it belongs to technical team, an IT team, या whether it belongs to recovery team or something like that, या loan team. So किस डिपार्टमेंट को ये टिकट जाना चाहिए? Can you tell me which department this ticket should belong? Sir, credit card. Credit card, because my bill cycle of my credit card is 6 June, but my credit limit, तो credit limit भी credit card में होती है, has reached, और थोड़ा बहुत आगे पीछे की वीजा वगैरह कुछ या ऐसा कुछ लिखा रहेगा. So based on that 2 or 3 words only, or maybe a few word, based on that few word only you will be able to classify it correctly कि ये credit card department में जाना चाहिए. मतलब जब भी हम बात करते हैं, अब आप समझने की कोशिश करना, जब भी हम लोग डिस्कशन करते हैं कुछ भी, तो उस डिस्कशन के अंदर आगे और पीछे के जो बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं वो हमारे कोई काम के होते ही नहीं है कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में. इफ यू वांट टू डू द क्लासिफिकेशन, इट्स जस्ट 1 or 2 वर्ड्स और वेरी फ्यू वर्ड्स. बेस्ड ऑन इट आप उसको पहचान सकते हैं कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, राइट? इसके अंदर 2-3 बार क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट लिमिट, मे बी कुछ और इस तरह की चीजें रहेंगी, बिल साइकिल या इस तरह की चीजें अगर रहती है तो उसके बेसिस पे ही हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कर जाते हैं कि ये किसके बारे में बात हो रही है, राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट हो जाता है whenever we want to classify or whenever we are working with a classification problem. तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम मतलब क्या हो गया कि ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम लोगों को कोई भी चीज को और कोई भी स्टेटमेंट को, जैसे ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इसको क्लासिफाई करना है. क्लासिफाई करना मतलब इसको पर्टिकुलर कैटेगरी में डालना है कि किस कैटेगरी को ये बिलोंग करता है. और वो डालने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 या 4 वर्ड ही इंपॉर्टेंट होते हैं, या वेरी फ्यू वर्ड आर इंपॉर्टेंट, और बाकी के जो वर्ड रहते हैं उसको आप लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. वाई वी आर रिमूविंग दीज एक्स्ट्रा वर्ड्स? क्योंकि जितने ज्यादा एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे हमारे पास में उतना ज्यादा सिस्टम में नॉइस होता है. देयर इज अ टर्म कॉल्ड नॉइस. तो उतना ज्यादा सिस्टम में नॉइस होता है और वो रिजल्ट्स को डेविएट करता है, वो रिजल्ट को हटाता है या अपने एक्चुअल टारगेट से डेविएट करता है. इफ यू आर गोइंग टू ट्रेन अवर मॉडल मोर एंड मोर बेस्ड ऑन दिस ओनली, तो हम लोग बहुत ज्यादा टारगेटेड वर्क कर पाएंगे. अदरवाइज वी आर गोइंग टू डेविएट अवर टारगेट्स, डेविएट फ्रॉम अवर टारगेट्स. ठीक है? तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग कि हमारे पास अगर कोई भी सेंटेंस दिया होता है, क्या करते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी सेंटेंस दिया होता है तो उस सेंटेंस को अलग अलग वर्ड्स में हम लोग ब्रेक करते हैं. वी ब्रेक द एंटायर सेंटेंस इनटू डिफरेंट वर्ड्स लाइक दिस, राइट? और इस तरह के वर्ड्स में तोड़ने के बाद उसको फिर आगे प्रोसेस करते हैं. तो व्हेन वी ब्रेक द सेंटेंस इन दिस काइंड ऑफ वर्ड, सो दिस एंटायर वर्ड, वन वर्ड इज कॉल्ड एज टोकन. टोकन क्या होता है? तो टोकन मतलब कि जो भी आपका पूरा सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में से आप जो वर्ड निकालते हैं, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एज टोकन्स. ये भी टोकन है, ये भी टोकन है, एंड देन अगेन ये भी टोकन है, फिर ये भी टोकन है. सो ऑल आर टोकन्स. सो टोकन मतलब क्या हो गया? टोकन मतलब हर सेंटेंस के हर वर्ड को निकाल के लाना. एवरी वर्ड ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड एज टोकन. सो दीज आर टोकन्स. ठीक है? एंड द प्रोसेस बाय विच we try to remove each and every word from a sentence is called as tokenization process. So one is token, another one is tokenization. So tokenization is a process by which, now let's read the definition. It is a process of separating a piece of text into smaller units called token. So it is a process by which we break the text into smaller piece of words. Okay, and token, it can be either a word, character or subword. अभी टोकन क्या होता है? तो टोकन मतलब ये भी हो सकता है, मीन्स अ वर्ड, या फिर टोकन मतलब ये भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोकन. तो टोकन मतलब क्या हो गया? तो टोकन मतलब पूरे सेंटेंस को छोटी छोटी यूनिट में तोड़ना. नाउ व्हाट इज दैट यूनिट? तो वो यूनिट, द यूनिट मे बी अ वर्ड और मे बी अ कैरेक्टर एज वेल और सबवर्ड एज वेल. सबवर्ड मीन्स इसको भी आप बोल सकते हैं कि इट इज अ टोकन, दिस कॉम्बिनेशन ऑल्सो. ठीक है? तो वो प्रोसेस जिसमें पूरे सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट में हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, एंड दैट स्मॉलर यूनिट्स आर कॉल्ड एज टोकन. तो टोकन में ब्रेक कर रहे हैं, उस प्रोसेस को टोकनाइजेशन बोलते हैं. एंड टोकन मे बी अ एंटायर वर्ड लाइक दिस, टोकन मे बी अ कैरेक्टर लाइक दिस, और टोकन मे बी अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, दैट मीन्स सब वर्ड लाइक दिस. क्लियर है? इज इट क्लियर?
Now if you have any question, please ask. All good? Shall I move on? ओके चलो, अभी टोकन के बाद अगली चीज देखते हैं कॉर्पस क्या होता है। तो कॉर्पस मीन्स क्या होता है कि आपने जो अलग अलग टोकन्स बनाए थे, दीज स्मॉलर टोकन्स, तो ये जो टोकन है, इस वर्ड के भी सारे टोकन आपने निकाल लिए। यूनिक वर्ड, लाइक इसके अगर यूनिक वर्ड देखेंगे तो इट इज मतलब इस पूरे में से यूनिक वर्ड हमारे पास 8 है। कैन बी आइदर वर्ड, कैरेक्टर और सब वर्ड, दीज आर द टोकन्स। नाउ अगर हम लोग यूनिक वर्ड की बात करेंगे तो 8 यहाँ पे आ चुका है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ कॉर्पस। देन ए इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉर्पस, प्रोसेस विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ कॉर्पस, देन ऑफ भी आएगा, सेपरेटिंग भी आएगा, ए भी आएगा, पीस ऑफ टेक्स्ट इनटू स्मॉलर यूनिट, ये सब जो रहेंगे। मतलब जो भी यूनिक टोकन्स जो रहते हैं, सिर्फ यूनिक टोकन्स को आप लोग पकड़ो। जैसे इट रिपीट हो रहा है तो उसको नहीं पकड़ रहे, इज हमने ऑलरेडी ले लिया है तो इसको भी नहीं ले रहे, कलेक्शन ले सकते हैं। ऑफ हमने ऑलरेडी ले लिया यहाँ पे तो ये भी नहीं ले रहे। देन यूनिक लेना पड़ सकता है, टोकन्स भी आ चुका है तो ये भी नहीं आएगा यहाँ पे, ये टोकन हमने यहाँ पे ले लिया है। इन हमारे पास आया है क्या, कहीं नहीं आया है तो ये भी ले लेंगे, गिवन भी ले लेंगे, एंड देन डॉक्यूमेंट भी ले लेंगे। तो कॉर्पस मतलब क्या हो गया, कॉर्पस मतलब कलेक्शन हो गया कि आपका जो पूरा सेंटेंस था या पूरा पैराग्राफ जो था, उस पैराग्राफ के जो छोटे छोटे टोकन्स आपने बनाए, उन टोकन में से सिर्फ यूनिक वाले जो टोकन रहेंगे उनको उठा के आप इसमें डाल दो, दैट फॉर्म्स अ कॉर्पस। ठीक है, क्लियर है व्हाट इज कॉर्पस? क्लियर Yes. है ना? एंड देन वोकेबुलरी, तो वोकेबुलरी इज अ सेट ऑफ यूनिक वर्ड्स यूज्ड इन द टेक्स्ट कॉर्पस। अभी जो कॉर्पस में ये जो वर्ड्स जा रहे हैं इनको वोकेबुलरी बोलते हैं। कॉर्पस मतलब ये जो पूरा बना है, दिस एंटायर सिस्टम, दिस कलेक्शन इज कॉल्ड एज कॉर्पस, एंड द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन द कॉर्पस आर कॉल्ड एज वोकैब और वोकेबुलरी। ठीक है, सो वी हैव लर्न 4 डिफरेंट टर्म्स। वन इज टोकनाइजेशन, another one is token, third one is corpus, and next one is vocab or vocabulary. ठीक है, now if you have any confusion please ask. No, sir. Okay, all right, so this is about different words of NLP or different terms used in the natural language processing. Now stop words, जैसा मैंने आपको बताया था कि stop words क्या होता है, तो these are the words which are not so relevant when you try to identify the topic or when you try to identify the sentiment of a particular topic, कि कोई भी टॉपिक है उसका सेंटिमेंट क्या है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो ये जो इस तरह के वर्ड होता है, ए, द, इज, आर, इस तरह के जो वर्ड रहते हैं, दीज आर जस्ट द कनेक्टर्स, ये सिर्फ कनेक्टर्स होते हैं। तो ये हमको कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन एक्चुअली देते ही नहीं है कि ये क्या टॉपिक के बारे में बात हो रही है, और वेदर इट इज़ पॉजिटिव और वेदर इट इज़ नेगेटिव, और क्या चीज़ हो रही है। तो हम लोग इस तरह के वर्ड्स को स्टॉप वर्ड्स बोलते हैं, और स्टॉप वर्ड्स को नॉर्मली जब भी हम लोग डेटा प्रोसेस करते हैं तो उसमें से निकाल देते हैं। सो वी रिमूव द स्टॉप वर्ड्स ड्यूरिंग द डेटा प्री प्रोसेसिंग। क्लियर? कोई डाउट है इसमें स्टॉप वर्ड्स में? और मैंने उसका एग्जांपल भी बताया था कि आई लव पिज्जा, उस आई लव पिज्जा में से लव पिज्जा आप रख सकते हो, बट आई हटा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लव पिज्जा भी पॉजिटिव है एंड आई लव पिज्जा भी पूरे तरह से पॉजिटिव है, तो काई को एक्स्ट्रा वर्ड रखने का, ठीक है, तो उनको निकाल देते हैं हम लोग। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग इन एनएलपी। सो एनएलपी में डेटा प्री प्रोसेसिंग का एक पार्ट ये भी होता है, रिमूविंग द स्टॉप वर्ड। ठीक है, अभी चलो मैंने ये लिखा आई लव पिज्जा, एंड देन एक कॉमा लगाया, एंड देन इट इज हैविंग 3 टॉपिंग्स, समथिंग ऑफ ऐसा कुछ लिखा मैंने। तो जब इसके स्टॉप वर्ड्स में बनाऊंगा, व्हेन आई एम गोइंग टू क्रिएट स्टॉप वर्ड्स आउट ऑफ इट, तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ये बनेगा, एंड देन ये जो कॉमा है
ये भी स्टॉप वर्ड में जाता है, देन इट इज भी सब इसके अंदर जाते हैं। तो मुझे ये बताओ कि जो कॉमा यहाँ पे लगा है, इस कॉमा का कोई यूज है क्या यहाँ पे, जिससे आपको कुछ पता चल रहा हो पिज्जा के बारे में, लव के बारे में, सेंटिमेंट्स के बारे में, टॉपिक के बारे में, कुछ कॉमा बताता है क्या आपको? कॉमा यूज आता है क्या, या कहीं पे ऐसा कॉलन लगा रहता है, कहीं पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहता है, कहीं क्वेश्चन मार्क लगा है? तो ये जो कैरेक्टर्स हैं या ये जो चीजें हैं, ये आपके लिए कुछ हेल्प करती है कि ये क्या, ये पिज्जा के बारे में बात हो रही है, क्या पॉजिटिव बात हो रही है, क्या नेगेटिव बात हो रही है, ऐसा कुछ पता चलता है क्या इन सबसे? सर कभी कभी सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। हाँ, मीनिंग चेंज हो जाता है, दैट्स फाइन, बट उससे ये पता चलता है आपको कि पिज्जा के बारे में बात हो रही है या नेगेटिव पॉजिटिव हो रही है? हम ये नहीं पूछ रहे हमारा कभी भी क्लासिफिकेशन का, वो अगेन सब्जेक्टिव चीज है, बट नॉर्मली हमारा क्लासिफिकेशन में ये नहीं होता है कि क्या ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है या ये आंसर दिया जा रहा है, राइट? इज इट अ क्वेश्चन और आंसर, ऐसा हमारे पास कभी क्लासिफिकेशन नहीं आता है। क्लासिफिकेशन अगर आता है तो ऑफ कोर्स देन इन दैट केस दे विल बी इंपॉर्टेंट, बट नॉर्मली क्या होता है, इज इट अबाउट पिज्जा और इज इट अबाउट क्रेडिट कार्ड, is it about credit reporting, is it about personal loan, is it about personal banking, इस तरह का आता है। तो उसके अंदर आप क्वेश्चन पूछो या आंसर दो, बात तो पर्सनल बैंकिंग की हो रही है, क्वेश्चन पूछो या आंसर दो, बात तो क्रेडिट कार्ड की हो रही है ना। तो उसमें फिर ये क्वेश्चन और ये इस तरह की चीजें काम आती है क्या? नो सर, नहीं आती है। तो नहीं आती है तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के पंक्चुएशन, दीज आर कॉल्ड एज पंक्चुएशंस, तो पंक्चुएशन को भी रिमूव करते हैं। पंक्चुएशंस को भी रिमूव कर दो। मतलब जब भी आप टेक्स्ट प्रोसेस करते हो तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के साथ में, यानी जब भी आप लोगों को डेटा प्री प्रोसेस करना रहता है, या जब भी आपको मान लो किसी चीज का, किसी वर्ड का सेंटिमेंट निकालना है, जैसे आपके पास बहुत बड़ा पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो इस पूरे पैराग्राफ को आपको क्लासिफाई करना है, इसको समझना है कि किसके बारे में बात कर रही है। तो उसमें आपके लिए क्या होगा, आपको ये भी समझना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा, इतने सारे के सारे वर्ड पढ़ने पड़ेंगे। एंड दिस इज जस्ट अ वेरी वेरी स्मॉल सेंटेंस, स्मॉल पैराग्राफ। बट जब भी आपके पास कोई बुक होगी या कोई बहुत बड़ा सा पैराग्राफ होगा, तो उसमें कितने वर्ड्स होंगे, लेट्स से उसके अंदर 1000 वर्ड्स हो गए, तो उन 1000 वर्ड्स को प्रोसेस करना और उसको फिर रीड करना, इट इज अ वेरी टीडियस टास्क, क्योंकि सारे के सारे को अलग अलग लेके फिर क्लासिफाई करना वो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, राइट? तो आइडिया यहाँ पे क्या होता है कि टू गेट मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स वी डू द डेटा प्री प्रोसेसिंग। और इस डेटा प्री प्रोसेसिंग में आइडिया ये रहता है कि ये 1000 वर्ड्स को जितना कम कर सको तुम, और जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स रख सको सिर्फ वही रखो, यूजलेस वर्ड्स को हटा दो, यूजलेस चीजों को हटा दो, ओनली इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैज टू बी केप्ट इन इट, सो दैट यू कैन गेट मोर एंड मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। ठीक है, क्लियर है? वरना अगर आप इट इज को रखोगे तो इट इज तो अगर आपने मान लो इट और इज, इसको हटाया नहीं और इसको हटाया नहीं, तो यहाँ देखोगे तो इट इज तो आपके पास यहाँ पे भी है और इट इज तो यहाँ पे भी है, और अगर आप इसको इंपॉर्टेंस देंगे तो फिर आपका मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा कि जो भी सेंटेंस है वो कॉर्पस के बारे में है या टोकनाइजेशन के बारे में है। द मोस्ट इंपॉर्टेंस यू शुड गिव टू द इन द मॉडल टू दिस वर्ड, और यहाँ पे इस वर्ड को इंपॉर्टेंस आपको देना चाहिए, तब आपका क्लासिफिकेशन बराबर होगा। वरना आपका क्लासिफिकेशन की ये कॉर्पस के बारे में बात हो रही है, वॉकेब के बारे में बात हो रही है या टोकनाइजेशन की बात हो रही है, आपका मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा और वो बता ही नहीं पाएगा कि किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, टोकन के बारे में, कॉर्पस के बारे में या वॉकेब के बारे में। क्यों? क्योंकि इट इज तो सब जगह है। तो ये भी अगर अपना वेटेज लेता है तो इट इज गोइंग टू एड इम्प्योरिटी टू द मॉडल और इनएक्यूरेसी टू द मॉडल। इसलिए जो भी इररिलेवेंट वर्ड होते हैं, जो भी यूजलेस वर्ड होते हैं, उनको हटा दिया जाता है। सो दीज टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड एज व्हाट? ये वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉप वर्ड्स। ठीक है, तो इट्स नॉर्मली स्टॉप वर्ड्स डेटा प्री प्रोसेसिंग के दौरान निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये जो वर्ड्स होते हैं ये भी यूजलेस होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पंक्चुएशंस। तो पंक्चुएशंस को भी निकाला जाता है, पंक्चुएशंस को भी रिमूव कर दिया जाता है। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में दो चीज हो गई, स्टॉप वर्ड्स रिमूव किए, पंक्चुएशंस रिमूव कर दिए। हर प्रोजेक्ट में ये जरूरत होती है, इसकी ध्यान रखिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस प्रोसेसेस डन। ये भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो जब भी डेटा टेक्स्ट प्रोसेस करते हो तो ये सब जो चीजें रहती है, दीज आर ऑफ नो रिलेवेंस, तो इनको हटाया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर मैं ऐसा लिखता हूं,
या फिर ऐसा लिखता हूं। तो होता क्या है कि नॉर्मली व्हेन वी ट्राई टू काइंड ऑफ रन दिस, तो ये एक अलग वर्ड काउंट होता है एंड दिस इज समथिंग काउंटेड एज अ डिफरेंट वर्ड। तो ये अलग वर्ड काउंट होता है, ये अलग काउंट होता है, बट आइडियली ये दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि ये कैपिटल में लिखा हुआ है, ये स्मॉल में लिखा है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, बट वर्ड तो सेम है। अब ये इतनी बार ये रिपीट, मतलब ऑफ कोर्स कोई भी वर्ड अगर बार बार रिपीट होगा, जैसे इस डेफिनेशन में वर्ड टोकन बार बार रिपीट होने लग गया, तो आपको बहुत ज्यादा इंडिकेशन हो जाएगा कि नहीं नहीं, कहीं ना कहीं ये बात टोकन के बारे में हो रही है, राइट। जैसे मैंने लिखा था, मान लो मैंने आईफोन लॉन्च किया, तो मैंने बोला आईफोन एक्स इज वेरी गुड इन क्वालिटी, बट iPhone X has iPhone X is very expensive. Also, it has very good camera. Apple has launched iPhone X in this. तो अगर मेरे पास बार बार आईफोन वर्ड यूज हो रहा है इसके अंदर, अगर मेरे सेंटेंस के अंदर या पूरे की पूरे पैराग्राफ में आईफोन वर्ड यूज हो रहा है बार बार, तो अगर ये बार बार यूज होगा, जितनी बार ये यूज होगा उतना ज्यादा उसका वेटेज बढ़ता जाएगा और उतना ज्यादा ये इंडिकेशन स्ट्रांग होता जाएगा कि हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे आईफोन की बात कर रहे हैं। तो जब आपको क्लासिफिकेशन करना होगा, तो क्लासिफिकेशन में अगर कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है, देन यू कैन रियली अंडरस्टैंड और यू कैन इजीली जज कि किसके बारे में ये बात हो रही है, करेक्ट है या रॉन्ग है। तो हम क्या करते हैं कि जब ये इस तरह के वर्ड्स बनाते हैं तो उनकी काउंटिंग करते हैं एंड देन वी ट्राई टू फिगर आउट कि कौन सा वर्ड कितनी बार यूज हो रहा है, एंड देन वी कम टू नो दैट आईफोन जो है यहाँ पे 4 टाइम्स यूज हो रहा है, सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, एंड देन प्रोबेबली वी कैन से दैट दिस टॉपिक इज अबाउट आईफोन। हम लोग यहाँ पे आईफोन के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज इट इज रिपीटिंग 4 टाइम्स। पर जब आपके पास इस तरह से एक ही वर्ड 2 बार अलग अलग काउंट होता है, मतलब पिज्जा 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1 टाइम, तो फिर क्या होता है कि हम नहीं समझ पाते कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बिकॉज दीज आर इन द फ्रीक्वेंसी 1 ओनली। तो 1 तो ये भी आ रहा है, 1 तो ये भी आ रहा है, 1 टाइम तो ये भी आ रहा है, तो आपके लिए ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर सब 1 टाइम आएंगे तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास ऐसे कोई वर्ड आ रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के कारण, मतलब लेटर्स के डिफरेंस के कारण उनकी फ्रीक्वेंसी 2 बार अलग अलग काउंट हो रही है, तो उनको सेम केस में कर दो। मे बी सबको लोअर केस में कर दिया, अगर आपने सबको लोअर केस में कर दिया तो पहला भी आपका पिज्जा आ जाएगा और दूसरा भी पिज्जा लिखा हुआ आएगा। देन जब आप इसको काउंट करेंगे तो पिज्जा विल बी हैविंग फ्रीक्वेंसी 2 नॉट 1, ये काउंट नहीं होगा, ये 2 बार काउंट हो जाएगा, और अगर ये 2 बार फ्रीक्वेंसी काउंट हो गई तो इसका इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा आपके मॉडल में, ठीक है। तो अगला इंपॉर्टेंट हमारे पास बात क्या हो गया, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, अगला इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए यहाँ पे क्या हो गया, nobody is saying something। अगला इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या हो गया आपके लिए, कैपिटल स्मॉल को या तो एक जैसा अपर ट्रीट केस में करना होना चाहिए या फिर लोअर करेक्ट। केस में। So you have to convert all the characters here or in any sentence to all to lower case। lower case सबसे easy होता है rather than capital case, तो convert everything to lower case। okay? सर हाँ सर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसको लोअर केस में करना है सभी को आपको कैसे पता किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या कम है, आपको कैसे पता कि किसकी फ्रीक्वेंसी कम है या ज्यादा, हो तो बाद में काउंट करोगे ना कन्वर्ट करने के। यस सर। सो यू हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग टू लोअर केस। ओके ठीक है, तो अभी आपके पास 3 स्टेप्स आ गए डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग मतलब कि एक्चुअली जब मॉडल में हम लोग डेटा यूज करने वाले हैं उसके जस्ट पहले हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो पहला स्टॉप वर्ड्स जो हैं वो आपको रिमूव करना है, दूसरा पंक्चुएशंस वो भी रिमूव करना है, तीसरा लोअर केस में सबको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। चौथा इफ यू हैव सम नंबर्स तो नंबर्स को भी हटा दो, एक्चुअली नंबर्स आल्सो समवेयर
डज नॉट रियली मेक सेंस, बट ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, कुछ केसेस में आप रख सकते हो डिपेंड अपॉन द यूज केस, बट नॉर्मली नंबर्स भी निकाल देते हैं हम लोग, बट अगर आपको लगता है कि आपके यूज केस के लिए इंपॉर्टेंट है सो यू कैन कीप इट। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज डेटा प्री प्रोसेसिंग, इसको डेटा प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं और उसमें हम लोग ये सब चीजें निकालते हैं। Now if you have any question around this, so can ask it, otherwise I am going to move ahead. कुछ क्वेश्चन है तो पूछो इसमें। No, sir. All clear. All clear? Yes, sir. चलो, तो लेट्स डू द डेटा प्री। अच्छा, अब अगला चीज आती है एनग्राम। एनग्राम क्या होता है? अभी हम लोग क्या कर रहे थे, मैंने लिखा था आई लव पिज्जा, जैसे ही आपने ये देखा सबने एकदम बोल दिया कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हम लोग पिज्जा की तारीफ कर रहे हैं या हम लोग कुछ तो भी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। ठीक है, कैसे बोला था आप लोगों ने, कोई रिकॉल करवा पाएगा मुझे कि कैसे मैंने बोला था कि अच्छी बात कर रहा हूँ मैं? सही, लव की वजह से। लव की वजह से आपने बोला कि दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, अब बताओ, लव तो यहाँ भी है, क्या ये पॉजिटिव वर्ड है? नो सर। क्यों? सर डोंट लग गया ना। डोंट लग गया तो सिर्फ इसके कारण आप कुछ नहीं बोल सकते, इसके आगे पीछे भी कई बार देखना पड़ सकता है आपको। नॉर्मली ये करते हैं तो वो काम आ जाता है, बट कई बार आपको इसके पेयर भी लेने पड़ते हैं वर्ड्स के, क्योंकि वर्ड के पहले और बाद में क्या लिखा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी प्रोसेसिंग करते हैं तो वी डू इट इन टू वे। पहला तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल वर्ड एक बार में लेते हैं। whenever you take one word at a time, whenever you take one word at a time, so it is called as unigram. uni का मतलब होता है वन, ग्राम का मतलब होता है वर्ड, so unigram. ठीक है, but sometime you may need to take two words at one go. Whenever you take pair of words to two words at one go, then that is called as two words at a time, then it is called as bigram. Bi का मतलब two and then gram का मतलब word. सारा लेटिन वर्ड से आ रहे हैं, ये लेटिन से निकाल के लाए ये लोग, तो यूनिग्राम एंड बाईग्राम। ठीक है, इसी तरह से कई बार आप लोग तीन वर्ड को, आप लोगों को 3 words at a time भी लेना पड़ सकता है। So when you take 3 words at one go, then it is called as trigram. Tri means again 3 gram. And इसी तरह से if you take n words at a time, so it is called as n-gram. Clear? So अभी समझा कि यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम, n-gram क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज कई बार बहुत सारे वर्ड्स एक साथ जाते हैं तो वो उनका मतलब सही निकल के आता है, तो दैट्स व्हाई वी समटाइम टेक्स, आई मीन नॉर्मली यूनि और बाई और ट्राईग्राम तक काफी रहता है, n-gram तक जाते ही नहीं हम लोग, बट बाईग्राम काफी होता है, बाई या ट्राईग्राम, टू गेट अ कंप्लीट सेंटेंस, राइट? जैसे अभी यहाँ पे बोलेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो अगर इसमें आपने बाईग्राम ले लिया तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ जाएगा, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट? सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक ट्राईग्राम हियर। तो अगेन वो प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में आपको डिसाइड करना पड़ता है कि बाईग्राम ले, ट्राईग्राम ले, या कई बार एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है उसके साथ में। ठीक है, सर सर अगर मुझे एग्जैक्ट वही सेंटेंस सर्च करना है, मतलब जो मैंने सर्च में दिया, तो वो कैसे करेगा फिर? सर अगर मुझे वही सेंटेंस सर्च करना, मतलब जैसे कि यहाँ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो सर ये कैसे सर्च करेगा, मतलब एग्जैक्ट वही सेंटेंस? नहीं, एग्जैक्ट वर्ड तो आप नहीं सर्च कर पाओगे ना, अगर वो वैसा कर रहे हो तो आप तो बहुत स्पेसिफिक हो गए, आपको तो जनरल मॉडल चाहिए, स्पेसिफिक हो जाओगे आप अगर वो एग्जैक्ट वर्ड सर्च करोगे। आपको तो सब पहले से ही पता है ना, अगर आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सर्च करना मतलब आपको पहले से पता है कि आपको सर्च क्या करना है, बट वैसा नहीं होता है, वेरिएशंस आते हैं इसके अंदर, इन सब चीजों में वेरिएशन। मतलब जैसे गूगल करता है सर ऐसा, क्या डबल इन्वर्टेड कॉमा में देते हैं ना सर? हाँ, तो वो रिकमेंडेशंस देता है। अरे गूगल क्या करता है, आप ये देखो ना अपना जीमेल पे आप कुछ लिखते हो
तो जीमेल पे आपने जैसे लिखा ना थैंक्स, तो आगे अपने आप वो ऐसा ग्रे वर्ड्स में देता है, हाँ सर, वो रिकमेंड करता है। रिकमेंड करते जाता है ऐसा, एंड रिगार्ड्स ऐसा करके जो रहेगा ये दे Yes. देगा। फिर आप टैब दबा दोगे या यहाँ के उसको एक्सेप्ट कर लोगे हाँ, तो ये तो पूरा की complete पूरा कर वर्ड आ देगा। जाएगा। तो ये Yes, ऑटो रिकमेंडेशन होता है। ये एनएलपी के ही आगे के मॉडल होते हैं जिसको सीक्वेंस मॉडलिंग बोला जाता है, या एलएसटीएम जो मॉडल होता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसके ऊपर Yes. वर्क करते हैं कि वो आगे का प्रेडिक्ट करता जाता है कि अभी तुमने थैंक्स लिखा है तो नॉर्मली थैंक्स के बाद लोग आगे लिखते हैं एंड रिगार्ड्स या थैंक यू वेरी मच या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कई बार आप ऐसा लिखोगे ना, प्लीज, जैसे ही आपने लिखा प्लीज और लिखा फाइंड, जैसे ही आपने लिखा प्लीज फाइंड तो ऑटोमेटिकली वो रिकमेंड कर देगा प्लीज फाइंड एंड देन आगे लिख देगा वो दी अटैचमेंट, ये रिकमेंड कर देगा वो। तो ये प्रिडिक्ट करता है वो कि भाई इतना लिख दिया है और नॉर्मली इसके बाद ये आता है, तो वो रिकमेंड करना शुरू कर देता है। सर आई थिंक आपने समझा नहीं मेरा क्वेश्चन सर। मैं कहना चाहता हूँ सर कि जैसे ये जो इनग्राम्स के अंदर जो डेफिनेशन लिखी है, मुझे एग्जैक्ट वही डेफिनेशन सर्च करना है। एग्जैक्ट ये जो लिखा है ना, व्हेन वी टेक सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस सीक्वेंस, ये पूरा एग्जैक्ट वही लाइन आना चाहिए। नहीं, ऐसा आ ही नहीं सकता ना, ये पूरा सर्च करना मतलब ये तो आप प्लेन सर्च कर रहे हो ना। यस तो सर, फिर तो ये उसके लिए ल्यूसेंट सर्च लगा दो। ल्यूसेंट सर्च पता है ना क्या होता है जावा में, तो ल्यूसेंट सर्च लगा दो, या फिर नॉर्मल सर्चिंग कोई भी लगा दो, बाइनरी सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ट्री सॉर्ट, जो भी आपको लगाना है, मतलब नॉर्मल सर्च का प्रोसेसिंग लगा दो। उसमें फिर एनएलपी कहाँ रह गया? एनएलपी जो होता है वो जनरलाइजेशन के लिए होता है और प्रेडिक्शन के लिए होता है। जैसे मैं शुरुआत में ही आपको बताया था कि भाई हम लोग क्यों कर रहे हैं ये काम, तो अगर आपने कोई यहाँ पे वर्ड लिखा है तो हमको सिर्फ वही वर्ड नहीं सर्च करना है। अगर वही वर्ड लिखा है और उसी को आप उसी से स्टार्टेड, जैसे आपने हैरी पॉटर यहाँ पे लिख दिया, तो अगर आप पे हैरी पॉटर ही लिखा हुआ आ रहा है सब जगह पे, तो कोई मतलब ही नहीं रहा। वो तो नॉर्मल सर्च कर लो, उससे काम हो जाएगा आपका। उसमें आपको एनएलपी पे लगाना है, मतलब इंक्लूड करा सकते हैं अपन। हाँ करवा लो ना। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सर्च करना है, तो जो भी आपका रिकमेंडेशन होगा उसमें आगे पीछे के सब वर्ड्स हटा दो या उनको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दो, सिर्फ कुछ कुछ वर्ड ही रहने दो यहाँ पे, एंड देन उसके बाद आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली, बट इसके ऊपर आपको ट्रेन करना पड़ेगा मॉडल को, थोड़े रिकॉर्ड्स के ऊपर थोड़े ज्यादा रिकॉर्ड डालने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली मॉडल पकड़ना शुरू कर देगा इसको। ओके सर, है ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली। क्या है, हम लोग सुपरवाइज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग पढ़ते हैं, तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि ये सब चीज़ें पीछे पीछे कैसे वर्क करती है, कैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन मॉडल वर्क करते हैं। बट एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास थोड़ा लिमिटेड स्कोप है टाइम का, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम लोग नहीं जा पा रहे। और उसके बाद अभी जाऊँगा भी मैं तो आपको समझेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है। तो वो जब एक्चुअली पूरा एंटायरिटी में हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं, पहले स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करते हैं, देन क्लासिफिकेशन मॉडल पढ़ते हैं, फिर रिग्रेशन मॉडल पढ़ते हैं, देन उसके बाद क्लस्टरिंग करते हैं, देन उसके बाद इन सब चीज़ों पे आते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें एक के बाद एक लिंक होती है। अभी थोड़ा सा ये डिसजॉइंट है बिकॉज कि पाइथन हमने पढ़ा, उसके बाद ये पढ़ा है, बट उसका रीज़न यही था कि बाकी की चीज़ें जो है वो बहुत ईजी रहती है। ये जो है थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छा टॉपिक हमारे पास था, 2 कंप्लीट प्रोजेक्ट भी आपके पास बन जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने लिया है। और ऐसा भी कोई बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है ये पहले वालों पे, थोड़ा एफर्ट करते तो समझ जाते हैं ये, है ना। तो ये हमारे पास हो गया। अभी बैग ऑफ वर्ड क्या होता है, तो बैग ऑफ वर्ड मतलब ये जितने भी हमने टोकन्स वगैरह निकाले हैं उनको एक बैग में, मतलब उनको इकट्ठा कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैग ऑफ वर्ड अप्रोच। ठीक है, इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं बैग ऑफ वर्ड पे, तो ये भी नहीं बता रहा मैं अभी। अब ये होने के बाद क्या होता है, एक तो ये हम लोगों ने कुछ कुछ टर्म्स पढ़ ली है। अब ये टर्म्स पढ़ ली, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं विच इज कोसाइन सिमिलैरिटी। तो कोसाइन सिमिलैरिटी क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जहाँ पे एआई का कंसेप्ट आता है। ठीक है, अब कोसाइन सिमिलैरिटी क्या होता है, आप लोगों ने शायद मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा बचपन में। कोसाइन सिमिलैरिटी क्या होता है, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये आप लोगों ने एक्चुअली वेक्टर्स में पढ़ा होगा, वेक्टर जब पढ़े थे ना तो उसके अंदर पढ़ा होगा ये, बट ठीक है भूल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होता क्या है कि, अच्छा मुझे बताना, हाँ, अगर मैंने लिखा प्रिंस, किंग और क्वीन, ठीक है, अभी मुझे बताओ कि ये तीनों वर्ड जो हैं ये सिमिलर हैं या अलग अलग एक दूसरे से? सेम बैकग्राउंड से है। अगेन मेरा क्वेश्चन अनआंसर्ड है। ये सही, ये सिमिलर है, इनको मैं सेम बताऊं
इनको अलग अलग बताऊं, इनको अपोजिट बताऊं एक दूसरे के, क्या करूं मैं? सर अपोजिट है। अपोजिट है, बहुत बढ़िया। कौन कौन अपोजिट है पहले बताओ। अपोजिट किसने बताया, बताओ मुझे कौन से अपोजिट है? सर प्रिंस और किंग। प्रिंस और किंग और क्वीन King or अपोजिट है, queen. ठीक है। हाँ. किंग इधर जाता है, क्वीन इधर जाती है, ठीक है। हम्म. डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, नहीं वैसा नहीं, एक जेंडर वाइज अगर देख लोगे, सो ही इज मेल एंड शी इज फीमेल, तो ये अपोजिट हो गए, एकदम अपोजिट हो गए ना एक दूसरे से, एकदम अपोजिट हो गए। अगर अच्छा इसको ग्राफ पे आप बनाओगे तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस है पॉजिटिव वाला, ये माइनस का एक्स एक्सिस है, प्लस का वाई एक्सिस है, और ये माइनस का वाई एक्सिस है। अभी आप ये बनाओगे तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। अच्छा, किसी को याद है बचपन का कि cos 180 कितना होता है? -1। वेरी गुड। cos 180 इज इक्वल टू -1। तो -1 अगर कोसाइन सिमिलैरिटी हमारे पास, मतलब अभी बताऊंगा मैं, धीरे धीरे अपने टॉपिक पे आऊंगा, बट -1 हमारे पास cos 180 आया है। कोसाइन सिमिलैरिटी भी क्या होता है? तो कोसाइन सिमिलैरिटी मतलब क्या होता है कि हम लोग कोसाइन सिमिलैरिटी में दो अलग अलग वेक्टर लेते हैं। वेक्टर मतलब क्या होता है कि जितने भी ये जो वर्ड्स हैं, जितने भी ये जो वर्ड्स होते हैं, मतलब जब आपने टोकन्स बना लिए, ठीक है, अब टोकन बनाने के बाद आपने क्या करा? टोकन की प्री प्रोसेसिंग कर दी, करी थी नहीं करी थी? टोकन की प्री प्रोसेसिंग कर दी, उसमें इफ बट ये सब हटा दिया था, ठीक है। ओनली इंपॉर्टेंट वर्ड्स रखे थे। उस इंपॉर्टेंट वर्ड में हो सकता था आपके पास पिज्जा रखा हो, पास्ता रखा हो, थोड़ा भूख ज्यादा लग रही तो खाने की बातें कर रहा हूँ आज मैं, तो उसमें आपके पास पिज्जा हो, पास्ता हो, मे बी पानी पूरी वगैरह कुछ भी हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके पास। अगर इन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप लोग अगर ग्राफ पर प्लॉट करोगे, ग्राफ पर प्लॉट करोगे, अभी ये मजे की बात आ गई कि पिज्जा को कैसे ग्राफ पे प्लॉट कर सकता है कोई, पर ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं? तो ग्राफ पे प्लॉट करने का तरीका ये होता है कि जो एक्स और वाई है, ये एक्स और वाई क्या है? ये डायमेंशंस है। ये कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम लोग किसी चीज को नापते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस, तो अगर आप मान लो वेलोसिटी की बात करते हो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, नहीं होता है? भूल गए सब? फिजिक्स भूल गए क्या? जो भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस इसी तरह से करा होता है ना। तो उसके अंदर आपने क्या किया था? यहाँ पे टाइम लिया था और यहाँ पे डिस्टेंस लिया था। अगर ग्राफ पे प्लॉट करना होता है उसको तो ऐसे ही करते हो। यस सर। यस सर। डिस्टेंस और टाइम इस तरह से लेते हो। मतलब डिस्टेंस क्या था? तो वो भी एक, कोई तो भी चीज थी, कोई तो भी एक डायमेंशन थी, कोई तो भी एक चीज थी। टाइम भी क्या था? कोई एक डायमेंशन थी, राइट। अगर 3 डायमेंशनल लेना होता है तो यहाँ पे जी एक्सिस और बना देते हो आप, उसके ऊपर भी कुछ एक अलग डायमेंशन रख देते हो। तो ये ग्राफ के ऊपर एक्चुअली होता क्या है? एक्स और वाई का मतलब क्या है? तो एक्स और वाई मतलब कोई प्रॉपर्टी होती है किसी चीज की। अभी हम लोग प्रॉपर्टी के नाम पे यहाँ पे डिस्टेंस लिए हैं और यहाँ पे टाइम लिए हैं, पर जरूरी थोड़ी कि हर बार वहाँ पे डिस्टेंस टाइम ही लिया जाए। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करोगे तो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाता है, तो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाती है। तो ये तो सब बदल सकते हैं एक्स और वाई। तो अगर हम लोग थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करें और ये जो चीजें हैं सारी, इनको हम लोग कुछ अलग ही एक्सेस ले लेते हैं। कैसा? एक एक्सेस ले लेते हैं फूड आइटम, फूड आइटम विच इज योर एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं इंडियन। अगर ये इंडियन है तो इसके पीछे वाला जो रहेगा उसका अपोजिट वो नॉन इंडियन होगा, मे बी इटालियन, जापानीज, थाई, और भी कुछ भी हो हमारे पास जो होता है, ठीक है। मैं सिर्फ इंडियन नॉन इंडियन ले रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ कि अगर मेरे पास 3 अलग अलग फूड आइटम है, एक है पिज्जा, एक है पास्ता और एक है पानी पूरी, अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो कैसे प्लॉट करूंगा? क्या कौन कौन से आइटम है जो मोस्ट सिमिलर आएंगे? मुझे ये बताओ कौन कौन से आइटम है जो मोस्ट सिमिलर होंगे इन डायमेंशन पे? फूड वर्सेस इंडियन नॉन इंडियन, कौन से आइटम है जो बहुत सिमिलर है एक दूसरे से? पिज्जा एंड पास्ता बहुत सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 डायमेंशन में एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। पहला तो पिज्जा एंड पास्ता दोनों फूड आइटम है, इनफैक्ट तीनों ही फूड आइटम है, पानी पूरी भी फूड आइटम है। तो सपोज इसका हम लोगों ने 1-1 पॉइंट दे दिया तीनों को, तो तीनों फूड आइटम है, तो तीनों के 1-1 पॉइंट यहाँ पे आ गए फूड आइटम वाले क्वाड्रेंट पे। बट पिज्जा एंड पास्ता दोनों जो है वो नॉन इंडियन है। नॉन इंडियन है मतलब -1 की तरफ जाएंगे, माइनस डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब इधर जाएंगे। तो समहाउ कहीं तो भी इधर हम लोग इनको प्लॉट करेंगे। दोनों नॉन इंडियन है, दोनों को नॉन इंडियन होने का 1-1 पॉइंट दे दिया, माइनस डायरेक्शन में, इसलिए -1 हो गया। तो ये -1 हो गए।
है ना। और ये जो इंडियन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो ये इधर आएगा। तो ये पानी पूरी हमारे पास यहाँ आ गया और पिज्जा पास्ता यहाँ पे आ गया। अभी उनके बीच का एंगल अगर आप देखोगे तो एक दूसरे का एंगल देखोगे तो थोड़े अपोजिट आ जाएंगे एक दूसरे से। तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो सकते हैं। मतलब किसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि पानी पूरी इज लिटिल डिफरेंट देन पिज्जा एंड पास्ता, बट पिज्जा एंड पास्ता आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, बोथ आर फास्ट फूड एंड पानी पूरी इज डिफरेंट देन, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, ऐसी अलग अलग डायमेंशंस होती है, और उस डायमेंशन पे सारे वर्ड्स जो हमारे पास होते हैं, अलग अलग तरह के जो वर्ड्स होते हैं, उनको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं और उसके बेसिस पे ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि वेदर दे आर सिमिलर और नॉट। और अगर वो सिमिलर होते हैं तो उनको हम लोग कॉन्टेक्स्ट मैप करते हैं, यानी उनको एक दूसरे से मैप करते हैं, और देन वी ट्राई टू फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड्स, और जो भी सिमिलर वर्ड होते हैं फिर उसको रिकमेंड करते हैं। तो जहां मैंने आपको याद हो कि मैंने बताया था कि मैं यहाँ पे कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग में सिर्फ मैं प्लेन सर्च नहीं करूंगा। अगर मेरे पास यहाँ पे किल लिखा है, किल द विल, और किल मी इफ यू कैन, ऐसा करके कोई मूवी है, किल मी इफ यू कैन, ये मूवी है, तो उसके अंदर मैं सिर्फ वर्ड किल नहीं ढूंढूंगा। वर्ड किल मिल गया वो तो मेरे लिए सबसे इजी सर्च हो जाएगा, बट किल से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हो सकते हैं वो सारे ढूंढ के लाऊंगा और उससे रिलेटेड सारी मूवीज को रिकमेंड करूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इस तरह से रिकमेंडेशन ये चलती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आपने बोला था कि किंग और क्वीन एक दूसरे से अपोजिट है। क्यों अपोजिट है? पहली चीज तो मैं अगर इसको प्लॉट करने की कोशिश करूंगा, किंग, प्रिंस एंड देन क्वीन, तो ये आप बोल रहे हैं कि ये अपोजिट हो सकते हैं, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये सेम भी हो सकते हैं या सिमिलर भी हो सकते हैं। कैसे? डिपेंड करता है कि किस डायमेंशन में आप इसको मैप कर रहे हैं। तो पहला डायमेंशन मैंने बोला रॉयल फैमिली, दूसरा बोला एज, एक एक्सिस लिया एज, और थर्ड एक्सिस लिया मैंने जेंडर। अब अगर आप बताते हैं तो रॉयल फैमिली के नाम पे तो तीनों रॉयल है, प्रिंस, क्वीन एंड किंग, तो ये तीनों को तो एक एक पॉइंट मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे तो तीनों को एक्स एक्सिस पे 1 1 1 दे देता हूँ मैं। ठीक है, अभी इनका जो वाई एक्सिस रहेगा दैट इज एज, तो एज वाइज अगर बोलेंगे तो किंग इज समथिंग मे बी 0.95 हाई इन एज। किंग की नॉर्मली एज ज्यादा होती है, बूढ़ा होता है। देन प्रिंस इज वेरी यंग इन एज, अगर ये बहुत यंग रहता है नॉर्मली तो इसको हम लोग 0.2 देंगे। जस्ट एन एग्जाम्पल, 2.5 या 2 या कम वैल्यू दे रहा हूँ प्रिसाइसली। और क्वीन, नॉर्मली क्वीन प्रिंस से बड़ी होती है और क्वीन से छोटी होती है, तो किंग से छोटी होती है, तो इट मे बी 0.80, राइट। जेंडर के लिए अगर हम बात करेंगे तो किंग 1 आ जाएगा, मेल है, प्रिंस भी 1 आ जाएगा, और ये जो रहेगा -1 रहेगा। तो अभी अगर आप बात करेंगे, इन सभी क्वाड्रेंट की बात कर लेंगे, तो रिलेटिवली अभी और ज्यादा इसके अंदर आपने डाल दिया 2 3 4 और आई वुड से क्या बोलते हैं उसको, 2 3 और डायमेंशन इसके अंदर डाल दी, लाइक अथॉरिटी और समथिंग, तो इट मे बी पॉसिबल कि किंग एंड क्वीन बिकम्स वेरी सिमिलर देन किंग एंड प्रिंस। ठीक है, तो जब इसके ऊपर आप लोग डायमेंशंस को मैप करते हैं तो मैप करने पे कई बार ऐसा होता है कि ये जो चीजें रहती है एक दूसरे से बहुत सारी चीजों में सेम भी होती है, जो आपको दिख रही है ऑब्वियसली डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली जो डिफरेंस दिख रही थी उसमें आप देखोगे तो ये काफी एक दूसरे के सिमिलर भी आ चुकी है, सिर्फ एक ही डायमेंशन पे। अगर मान लो मैंने जेंडर कंसीडर ही नहीं किया होता, सिर्फ 2 डायमेंशनल ही लिया था, तो उस केस में मेरे पास ज्यादा क्लोज कौन आता है, किंग एंड क्वीन रादर देन किंग एंड प्रिंस। क्लियर है? Am I clear here? यस सर। है ना। तो ये होता है हमारे पास कोसाइन सिमिलैरिटी। तो कोसाइन सिमिलैरिटी मतलब क्या होता है? तो कोसाइन सिमिलैरिटी मतलब हम लोग वर्ड्स को लेते हैं, लाइक किंग एंड क्वीन, कोई भी वर्ड लिया आपने, किंग क्वीन जरूरी नहीं है, आपने कोई भी वर्ड्स लिया और उनको मैप किया एक्सिस पे, और मैप करने के बाद उनके बीच का एंगल निकालते हैं, एंड देन बेस्ड ऑन दिस एंगल वी ट्राई टू फिगर आउट वेदर दीज वर्ड्स आर सिमिलर टू ईच अदर और नॉट। अभी कोई मेरे को बताएगा cos 0 कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है। 1 सर। 0 मतलब एंगल दोनों के बीच का 0 है। अगर दोनों के बीच का एंगल 0 है मतलब किंग भी यहीं पे ही है और क्वीन भी यहीं पे ही है, और दोनों एक ही जगह पे होना मतलब दोनों वेरी वेरी सिमिलर होना, दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज है, दोनों एक दूसरे के बहुत सिमिलर है। तो अगर हमारे पास कोसाइन सिमिलरिटी की वैल्यू 1 आ जाती मींस द वर्ड्स आर वेरी वेरी क्लोजर टू ईच अदर। अगर हमारे पास cos 90 आता है तो cos 90 कितना होता है? 0 होता है। 0 होता है मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, एकदम अपोजिट नहीं है बट अलग है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम, नीदर अपोजिट नॉर सिमिलर बट अलग।
वी कांट कंपेयर देम। और cos 180 कितना होता है? -1। -1 मीन्स बोथ आर वेरी अपोजिट टू ईच अदर। एक मेल है तो दूसरा फीमेल है, तो दोनों कुछ ना कुछ तरीके से तो रिलेटेड है एक दूसरे से, भले ही दोनों एक दूसरे से अपोजिट रिलेटेड है। तो दैट इज व्हाट इज द कोसाइन सिमिलैरिटी। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये कोसाइन सिमिलैरिटी से हम लोग इनके बीच के रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, किसके? वर्ड्स के। एंड बेस्ड ऑन दैट वर्ड रिलेशनशिप वी ट्राई टू रिकमेंड देम। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो, ये कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग के एडवांटेज आ गए, वो मैं सबसे आखिरी में लूंगा आफ्टर रनिंग द यूज केस। तो आगे बढ़े, कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग पढ़ें, पाइथन में देखें कैसे रन होता है। यस सर। चलो, तो मेरे पास एक बुक्स डेटा सेट है। बुक्स डेटा सेट में मेरे पास बहुत सारे बुक्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको डेटा सेट यहाँ पे शो करूंगा। तो अभी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ डेटा सेट को बाय pandas pd.read_csv। रीड किया और उसको हेड किया मैंने, तो हेड किया तो मेरे पास बुक आईडी आ गया, और क्या आ रहा है, ये बुक का ऑथर का नाम आ गया है। एंड दिस इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द बुक, द हंगर गेम्स, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन, देन टू किल मॉकिंगबर्ड, द ग्रेट गेट्सबी और समथिंग लाइक दैट। तो ये हमारे पास बुक्स के टाइटल आ गए। अब हम लोगों को इस पूरे में कंपेयर करना है, रिकमेंड करना है बुक्स को ऑफ कोर्स। तो जैसे ही आपने लिख दिया, मान लो किल लिखा आपने, जैसे ही आपने वर्ड किल लिखा तो आपको आपके पास रिकमेंडेशन में सबसे पहले आ जाना चाहिए टू किल द मॉकिंग बर्ड, और किल से रिलेटेड जितनी भी जो बुक्स थी उससे सिमिलर बुक्स हमारे पास आ जानी चाहिए। या इवन आपने ये पूरा बुक लिखा, ये पूरा बुक का टाइटल भी लिख दिया, तो फिर इससे रिलेटेड जो बुक्स होती है, मे बी इसका पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा, तो वो सब आ जाना चाहिए, और उसके बाद उसी से रिलेटेड बुक्स और आ जाना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द रिकमेंडेशन प्रोसेस हियर। अगर आपने हैरी पॉटर लिखा है तो हैरी पॉटर के सारे पार्ट्स आपके सामने लिख के आ जाना चाहिए, और उसके बाद भी हैरी पॉटर से रिलेटेड जितनी भी मूवीज रहती है वो सब आ जाने चाहिए। दैट इज द रिकमेंडेशन सिस्टम बेस्ड ऑन कंटेंट। तो अभी हम कंटेंट बेस्ड मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने पॉपुलैरिटी करी थी, यहाँ पे पॉपुलैरिटी नहीं है, यहाँ पे आप लिख रहे हो कि भाई इससे रिलेटेड निकाल के लाओ जितना भी है, तो वो करने वाले हम लोग। ठीक है, अब डेटा प्री प्रोसेसिंग पोर्शन आ गया। डेटा प्री प्रोसेसिंग मैंने बताया था क्या क्या करेंगे इसके अंदर, तो वही हम लोग करने जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, पहले तो एक कॉपी बना ली इसकी डेटा फ्रेम की। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ बुक आईडी चाहिए इसमें, ताकि मैं पहचान पाऊँ कौन सी बुक के बारे में बात हो रही है, और उसका टाइटल चाहिए। बाकी सब मेरे काम का नहीं है, तो मैंने सब हटा दिया। ठीक है, एक कॉपी बना ली मैंने उसकी, और मेरे पास सिर्फ ये रह गया जिसमें टाइटल है और आईडी है, ताकि मैं पहचान पाऊंगा। ठीक है ना, उसके बाद अगला मैंने क्या बोला था, हमको करना है इसका प्री प्रोसेसिंग। तो प्री प्रोसेसिंग करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, तो मेरे पास एक लाइब्रेरी है या एक पैकेज है विच इज कॉल्ड एज sklearn फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट। ये एक मेरे पास पैकेज होता है पाइथन में, और इस पैकेज से मेरे को काउंट वेक्टराइजर नाम का एक फंक्शन निकाल के लाना है। नाउ काउंट वेक्टराइजर नाम का जो फंक्शन है, इससे बहुत सारी चीज एक साथ हो जाती है, एक ही कमांड में हो जाती है। जो मैंने इतना सारा बताया था कि एनग्राम भी लगाना है, वर्ड्स यानी टोकन्स भी निकालने हैं, एनग्राम भी निकालना है, स्टॉप वर्ड भी रोकना है, और पंक्चुएशन भी रिमूव करना है, और बहुत सारी चीजें आपको एनग्राम भी करना है, तो ये सब चीजें काउंट वेक्टराइजर के थ्रू हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ काउंट वेक्टराइजर फंक्शन निकालना है, उसके थ्रू सब चीजें एक बार में वन शॉट में कर दोगे। तो उसके लिए हमने ये काउंट वेक्टराइजर जो रहता है वो इस पर्टिकुलर पैकेज में होता है, तो इस पैकेज से काउंट वेक्टराइजर को आपने इंपोर्ट कर दिया। और अब इसको इंपोर्ट करने के बाद आपको करना क्या है, सिर्फ इस फंक्शन का नाम लेना है, काउंट वेक्टराइजर। ठीक है, और फिर यहाँ पे एनालाइजर नाम की पैरामीटर होती है। तो एनालाइजर आपको याद हो तो मैंने बोला था टोकन 3 तरह के होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने बताया था टोकन 3 तरह के होते हैं। ठीक है, दिखे आपको 3 तरह के टोकन, एक होता है वर्ड्स का, दूसरा होता है कैरेक्टर का, तीसरा होता है सब वर्ड्स का। वर्ड्स मतलब ऐसा निकालोगे आप, कैरेक्टर मतलब ये निकालोगे, और सब वर्ड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड निकालोगे। ठीक है, तो ये 3 तरह का होता है। हम लोग वर्ड टोकनाइजर यूज करने वाले हैं, मतलब सिर्फ वर्ड टोकन्स के फॉर्म में निकालने वाले हैं। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, उसके लिए हमने यहाँ पे एनालाइजर में वर्ड्स मेंशन कर दिया। वर्ड्स मतलब वर्ड टोकनाइजर हम लोग यूज कर रहे हैं। क्लियर है, इसमें कोई डाउट अभी तक? ना आफ्टर वर्ड टोकनाइजर हम लोगों ने एनग्राम लिया है, तो एनग्राम की जो रेंज है वो हमने मेंशन करी, और उस रेंज में हमने लिखा 1 and 2। मतलब इस पूरी एक्सरसाइज में हम लोग यूनिग्राम और बाईग्राम का यूज करेंगे सिर्फ। आप चाहे तो ट्राईग्राम भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। उससे आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छा आपके पास प्रिडिक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट मैं यहाँ पे यूनिग्राम एंड बाईग्राम करूंगा। यू कैन एक्सपेरिमेंट विथ इट एंड गेट मोर एक्यूरेसी या मोर गुड रिकमेंडेशंस।
ठीक है। देन थर्ड वाला लोअर केस इज इक्वल टू ट्रू। मैंने बताया था कि प्री प्रोसेसिंग में हमको सारे कैपिटल को या मिक्स कैरेक्टर्स मिक्स वर्ड्स को स्मॉल में करना है, तो इसलिए मैंने लोअर केस इज इक्वल टू ट्रू कर दिया है। एंड देन स्टॉप वर्ड्स इज इक्वल टू इंग्लिश मैंने लिखा है, इसका मतलब मुझे स्टॉप वर्ड्स रिमूव करना है यहाँ से। कौन से स्टॉप वर्ड? इंग्लिश में जो स्टॉप वर्ड आते हैं वो वाले स्टॉप वर्ड्स, ठीक है। वैसे जो काउंट वेक्टराइजर जो हमारे पास फंक्शन है, इसकी बहुत सारी पैरामीटर होती है। यू कैन काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, लुक एट इट, एक्सप्लोर इट मोर, ठीक है। कैसे करोगे, कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो कि क्या क्या पैरामीटर होती है इसकी? तो उसके लिए पहले लिखो जो भी आपका फंक्शन है उसका नाम, दबाओ एक टैब का बटन, टैब टैब का बटन दबाओ लैपटॉप से, तो ये फंक्शन पूरा हो जाएगा। फंक्शन पूरा, या तो पूरा फंक्शन का नाम लिख दो, नहीं तो टैब दबा दोगे तो भी ऑटो कंप्लीट होता है ये। और उसके बाद शिफ्ट और टैब दबाओ, शिफ्ट और टैब। जैसे ही शिफ्ट और टैब दबाओगे तो आपको उस फंक्शन का हेल्प खुल जाएगा। अब इस फंक्शन में देखो इतनी सारी पैरामीटर होती है, यू कैन प्ले विद दीज पैरामीटर्स। vocabulary is equal to none, binary, dtype, minf, df, tokenizer, stop word, pre-processing, lowercase, ending, encoding, input, decode error, and so on and so forth. You can explore them. ठीक है, उसकी हेल्प भी होती है नीचे कि इनका मतलब क्या होता है, वो भी बताता है वो, उसका मतलब भी आपको बता देगा। तो यू कैन एक्सप्लोर इट। हम लोगों ने अभी कुछ एक लिमिटेड चीजें पढ़ी हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया वर्ड क्या है, एनग्राम क्या है, ये मिन डीएफ मैक्स डीएफ बताऊंगा अभी, लोअर केस क्या है और स्टॉप वर्ड क्या है ये बता दिया हमने। अब मिन डीएफ क्या होता है और मैक्स डीएफ क्या होता है? मिन डीएफ मतलब क्या होता है कि जब आप आपका वोकेबुलरी बनाते हैं या कॉर्पस बनाते हैं, तो कॉर्पस में आप लोग हर वर्ड का काउंट लेंगे, हर वर्ड का काउंट लेंगे। मतलब हैरी जो वर्ड है वो हमारे पास 5 बार आ रहा है, पॉटर जो रहता है वो 4 टाइम्स आ रहा है, मैरी गोल्ड आ रहा है 3 टाइम्स, एंड सो ऑन एंड सो, सॉरी 50 टाइम, 40 टाइम, 35 टाइम, समथिंग इज 36 टाइम, ऐसा कुछ करके आ रहा है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप कुछ एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस जो रहता है मोस्ट जनरलाइज्ड वर्ड्स पे करते हैं, जो ना तो बहुत कम हो ना बहुत ज्यादा हो, क्योंकि अब बहुत कम वर्ड, मतलब मे बी एक वर्ड होगा XYZ करके, अब XYZ एक ही बार आ रहा है, मतलब ऑफ कोर्स ये किसी ने गलती से डाल दिया होगा, राइट। या अगर है भी ये सीक्वेंस अगर किसी मीनिंग के साथ भी है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट में दूसरे वर्ड्स बार बार आ रहे हैं। तो ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है उस डॉक्यूमेंट के लिए, क्योंकि ये बार बार आ रहे हैं। इट इज कमिंग जस्ट 1 और 2 टाइम, तो ठीक है, इसको इग्नोर कर दो, कोई काम का नहीं होता नॉर्मली। और कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं कि जो बहुत ही ज्यादा बार आते हैं, लाइक अगर आपने आईफोन के ऊपर कोई टॉपिक लिखा है तो उस टॉपिक को लिखोगे तो ऑफकोर्स उस पूरे पैराग्राफ में या उस पूरे टॉपिक में आपको आईफोन जो रहेगा वो 50 बार लिखा हुआ दिखेगा, आपको 50 बार लिखा हुआ दिखेगा आईफोन। और जब आप इसका एनालिसिस करोगे तो उस एनालिसिस के बाद आप निकाल के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग लाओगे और बोलोगे दिस स्टेटमेंट इज रिटन और दिस टॉपिक इज रिटन अबाउट आईफोन। बट आपको तो पहले से ही पता है कि आईफोन के बारे में है, राइट। तो फिर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, क्योंकि आप जब पता है आपको प्रायरी, अगेन ये सब्जेक्टिव सारी चीजें होती है, तो जब आपको पहले से ही पता है कि आप आईफोन की बात कर रहे हैं तो फिर एनालिसिस करके बताना कि भाई ये जो पूरा टॉपिक का डिस्कशन हुआ ये आईफोन के बारे में हुआ, तो इसमें तो आपने कोई रॉकेट साइंस वाला काम किया नहीं या कोई अच्छा काम किया नहीं, ये तो हमको पहले से ही पता था। सो इट इज नॉट सो एक्साइटिंग। मतलब अगर हमारे पास कॉर्पस में कोई वर्ड है जो बहुत कम बार आ रहे हैं या कोई वर्ड है जो बहुत ज्यादा बार आ रहे हैं, तो ऐसे वर्ड जो बहुत ही ज्यादा बार आते हैं और ऐसे वर्ड जो बहुत ही कम बार आते हैं, उन दोनों को भी हम लोग, उन तरह के वर्ड्स को भी हम लोग निकाल देना प्रेफर करते हैं। डिपेंड अपॉन योर यूज केस, आप लोगों के हाथ में पूरा कंट्रोल है, आप चाहो तो निकालो, ना चाहो तो ना निकालो, बट निकाल दोगे अच्छा रहता है। अगेन डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम इन, ठीक है। ये एक रिकमेंडेशन है, इट इज नॉट अ थंब रूल कि ऐसा निकालते ही है, ऐसा नहीं बोलने का हर बार कि आपके पास आया आपने आंख बंद किया निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको आंख बंद करके निकालना नहीं है, उसको थोड़ा सोचना है कि आपके हाथ में प्रॉब्लम क्या है, एंड देन उसके बेसिस पे आपको कॉल लेना है कि वेदर आई शुड रिमूव इट और नॉट। इट इज अ सजेशन कि निकाल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज रीजन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर है? इसमें कुछ डाउट? तो ये जो पैरामीटर है इसको बोलते हैं मैक्स डीएफ और इसको बोलते हैं मिन डीएफ। ये मिन डीएफ है और ये मैक्स डीएफ है, ठीक। कोई डाउट हो तो अभी बताओ इसमें, नहीं तो मैं क्लीन करता हूं इसको फिर बोर्ड को।
क्लियर करूं? चलो गया। तो ये min df हो गया। जो हमने क्या बोला, min df में 0.005 मतलब कोई छोटी सी वैल्यू में बहुत कोई वर्ड है जो बहुत बहुत कम बार आ रहा है, तो 0.0005 डाल दिया कि हाँ बहुत ही रेयर कोई वर्ड है तो उसको निकाल दो। मैक्स df हमने निकाला नहीं है। यू कैन प्ले विथ इट एंड देन रिमूव इट। ठीक है, तो ये काउंट वेक्टराइजर आपने डिफाइन कर लिया, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ये तो मैंने लिखा था तो इसको तो हटा देता हूँ। तो वेक्ट नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया। चलो इसको रन कर देते हैं ये ऑब्जेक्ट को। अभी ऑब्जेक्ट आया बट इसको अप्लाई नहीं किया हमने अपने डेटा सेट पे। अपने डेटा सेट पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने डेटा सेट पे कैसे अप्लाई करेंगे, अभी देखो उसके लगाने के पहले का क्या था और बाद में क्या होता है उसका। तो हमारे पास डेटा सेट जो था हमारा बुक अंडरस्कोर सब, उसका उसके ऊपर मैंने शेप फंक्शन यूज किया। शेप क्या बताता है कि इस डेटा फ्रेम में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। तो ये बता रहा है मेरे को कि ये जो हमारी डेटा फ्रेम है बुक्स सब नाम की, इस डेटा फ्रेम में मेरे पास 1000 रोज है, 10,000 रोज है, 10,000 रोज है और 2 कॉलम है, मतलब 2 कॉलम है और 10,000 रो है मेरे पास। ठीक है, और अगर उस पर हेड भी रन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें हमारे पास बुक आईडी है और टाइटल है। नाउ अब ये करने के बाद मैंने इसके ऊपर वेक्ट नाम का जो फंक्शन या ऑब्जेक्ट ऊपर बनाया था काउंट वेक्टराइजर के थ्रू, वो लगाया है उसके साथ में फिट। तो वेक्ट डॉट फिट मतलब वो जो वेक्ट नाम का जो फंक्शन आपने बनाया था काउंट वेक्टराइजर के बाद, वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वहां तो हमने सिर्फ डिफाइन किया था, यहाँ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इसको। तो जब आप उसको अप्लाई करोगे तो कैसा दिखेगा वो, वेक्ट डॉट फिट इस तरह से अप्लाई होता है। और किस पे लगाने वाले हो वो, तो यहाँ पे तो ऑफकोर्स वो लगाओगे नहीं, इस पे लगाने का कोई फायदा नहीं। टोकनाइज करोगे क्या इसको थोड़ी टोकनाइज करना, हमको तो टोकनाइज इसको करना है, ये जो टाइटल आ रहे हैं इसको, ताकि इसको हम लोग समझ पाए। इसलिए हम लोग बुक्स सब नाम की डेटा फ्रेम में से टाइटल नाम का जो कॉलम है सिर्फ वो निकाल के उसको हम लोग वेक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे उसको फिट किया और देर उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया। तो फिट और ट्रांसफॉर्म करके आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगा, टाइटल मैट्रिक्स बन गया। अब ये जो मैट्रिक्स बना है, लेट्स सी इट्स शेप। ठीक है, अभी तो ये बुक्स सब का शेप देखा आपने, तो बुक्स सब तो हमारे पास वही थी क्योंकि इसमें तो चेंजेस किए नहीं है। अब जरा टाइटल मैट्रिक्स जो बना था उसको देखते हैं। तो ये जो टाइटल मैट्रिक्स था हमारा, ये जो बना था टाइटल मैट्रिक्स, इसको देखते हैं। उसको जैसे रन करोगे शेप में तो आप देखोगे कि ये 10,000 हमारे पास रो है और ये आउट ऑफ 10,000 हमारे पास 27,836 जो 863 जो है वो कॉलम बन गए। मतलब अभी क्या हो गया ना हमारे पास कि जैसे यहाँ था द, हैंगर, गेम, दिस 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 दिस, ये सब हमारे पास थे ना, राइट। तो ये जितने एक एक वर्ड थे उससे हम लोग क्या बनाते थे, सारे वर्ड, सारे यूनिक वर्ड्स को मिला के जो बनता था उसको क्या बोलते थे, सारे यूनिक वर्ड को मिला के जो बनता था उसको क्या बोलते थे, कॉर्पस, राइट। कॉर्पस होता था। तो ऑफ कोर्स ये हमारे पास एक रो जरूर है, बट इस एक रो के अंदर कितने हमारे पास टोकन्स होंगे, मे बी 5-6 टोकन, 10 टोकन तो हर एक रो में होंगे, करेक्ट। तो वो सबको जोड़ते जाओगे तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक ऐसा मैट्रिक्स बनता है पूरा पीछे के पीछे, जिसमें यहाँ पे तो हमारे पास टाइटल होगा, ये टाइटल, देन ये टाइटल, देन ये टाइटल, ये ऐसे टाइटल हमारे पास है। और यहाँ पे जो हमारे पास रहता है ना ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा रहेगा हंगर, गेम्स, फिर हैरी, हर एक का एक एक कॉलम बना रहेगा, पॉटर, देन सोरेसस, फिर उसके बाद किल, मॉकिंग बर्ड, ये हर एक जो रहेगा ना वो निकला रहेगा। ठीक है, अब हमारा जो पहला टाइटल है, अब हमारा जो पहला टाइटल है क्या है, ये द हंगर गेम्स। चलो ये पे लिखता हूँ मैं इसको, द हंगर गेम्स, ये हमारा पहला टाइटल है। तो इसका जो मैट्रिक्स बना है उस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स बना रहेगा, उसमें लिखा रहेगा हंगर, क्योंकि द तो हमने निकाल दिया है, वो तो हमारा वो था स्टॉप वर्ड, हंगर गेम्स है ना, ये लिखा रहेगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है, हैरी पॉटर, सोरेसस, स्टोन, फिर अगला वाला जो रहेगा ट्विलाइट, देन उसके आगे का, और ऐसे चलता जाएगा। ऐसे हमारे पास कितनी कॉलम्स है, 27,863। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है इसके अंदर, इस पूरे के अंदर जब हमारा जो पहला टाइटल है, मतलब ये वाला जो टाइटल है हैरी पॉटर वाला,
इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मैच कर रहे हैं। तो हंगर मैच कर रहा है तो इसके अगेंस्ट हमारे पास 1 रहेगा। गेम्स मैच कर रहा है तो इसके अगेंस्ट 1 रहेगा। क्या इस टाइटल में हमारे पास हैरी है? नहीं है। क्या इस टाइटल में हमारे पास पॉटर है? नहीं है। क्या सोरेसेस है? नहीं है। बाकी सारी चीजें नहीं है, तो ये 0 0 0 आता है। इसी तरह से दूसरे में बात करेंगे तो दूसरे में हमारे पास क्या यहाँ पे हंगर है? नहीं है। गेम्स है? नहीं है। हैरी है? हाँ है। पॉटर है? हाँ है। सोरेसेस है? हाँ है। स्टोन्स है? हाँ है। बाकी चीजें नहीं है। फिर इसी तरह से ट्विलाइट के अंदर क्या होगा? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सब नहीं है, सिर्फ ट्विलाइट है। तो ये ऐसा एक हमारे पास मैट्रिक्स टाइप का तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। ये जो मैट्रिक्स क्रिएट होता है, इन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं टर्म्स, और इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स। इसको बोलते हैं टर्म्स और इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं इसको? टर्म्स बोलते हैं। टोकन्स को टर्म्स भी बोलते हैं, तो टर्म्स बोलते हैं, और इनको बोलते हैं डॉक्यूमेंट। और ये जो मैट्रिक्स बनता है इसको बोलते हैं टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स, टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स, और TDM, टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स, TDM। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो हमारे पास टोटल 10,000 सेंटेंसेस थे, उसमें से ये हमारे पास कितने आ गए डॉक्यूमेंट्स? तो ये हमारे पास आ गए 27,863। क्लियर? ये सब स्टॉप वर्ड वगैरह निकाल के और सब कुछ करके हमारे पास ये आया है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट थोड़ा पे करो अटेंशन, अपने आप समझ में आएगा वो। सर ये पूरा फिट फंक्शन से हो रहा है? हाँ, ये फिट फंक्शन से हो रहा है। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स आपने बना दिया। अच्छा, अभी ये देखना, अगर मैं यहाँ पे हमने क्या करा, तो हमने बहुत रेयर वर्ड जो थे वो निकाल दिए, इसलिए 27 कुछ तो भी आया था। अगर मैं बहुत रेयर वर्ड की जगह नॉर्मल कॉमन वर्ड भी निकालता हूँ, जैसे इसको इतना जो मैंने बहुत रेयर करा था उसको नॉर्मल करा, मतलब थोड़ा कम वैल्यू करा, तो इसमें से थोड़े कम रेयर वर्ड जो होंगे वो भी निकल जाएंगे। अगर थोड़े कम रेयर वर्ड निकले तो देखो क्या उस पर टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स पे फर्क आता है क्या? देखते हैं यहाँ पे। सेवन 863 फर्क क्यों नहीं आया भाई? कुछ मैंने मिस किया है। चलो इसको ऐसा कर देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ। अच्छा, मैंने फिट नहीं किया होगा, हाँ फिट नहीं किया, इसलिए वो रन नहीं हुआ। यहाँ फिट करना जरूरी था। तो देखो ये फिट कर दिया मैंने, फिट किया तो इसने क्या बोल दिया, कुछ एरर दे दिया। आफ्टर प्रूनिंग नो टर्म रिमेन, ओके, तो इसने बोला कि बहुत ज़्यादा तुमने रिमूव कर दिया। ये देखो एरर देखो, आफ्टर प्रूनिंग नो टर्म रिमेन्स, ट्राई लोअर मेन DF। मतलब आपने क्या बोला कि तुमने बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स निकाल दिया, अभी ऐसा करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे TDM में। तो ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, मैं फिट करने की कोशिश करता हूँ। ये हुआ? अब ध्यान देना जरा। हाँ, यहाँ पे हमारे पास कितना था शेप में देखा था, तो 27,863। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ही एकदम रेयर वाले जो थे उनको निकाला था। अभी रेयर वाले नहीं, थोड़े कम रेयर वालों को भी निकाल दिया। अगर थोड़े कम रेयर वालों को निकालोगे तो इस पर क्या फर्क आएगा? ये देखो, सिर्फ 49 टर्म बची। मतलब आपने जितने भी थे सभी को ही निकाल डाला, सबको नहीं निकाल के देना है। ठीक है, बहुत ही जो रेयर वर्ड जो थे उनको निकालना है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया। समझ आया इसका क्या फर्क पड़ गया एकदम से? अब क्या हो गया? हाँ, ये तो 2 ही रहेगा। यहाँ पे 49 से कितना हो गया? 27,863 वापस आ गया जब मैंने इसको बढ़ा दिया था। ठीक है, अब देख लो इसको कि फीचर नेम्स। फीचर नेम मतलब क्या हो गया? वो जो कॉलम मैंने बनाया था ना जिसमें अलग अलग टर्म्स आ रही थी, तो वो ये सारे हैं। मतलब ये रो था, इधर का वाला रो था, और मैंने बताया था ना कि यहाँ पे कॉलम आ रहे थे, हैरी पॉटर, ये वो फलाना टिकाना। तो ये सब जो चीज़ें ये रही, 0 प्लेस, ईयर, 0 अलाइस, ब्लैक डेज, ये सब नंबर्स के साथ आ रही है, क्योंकि नंबर के साथ थे। कुछ कुछ विदाउट नंबर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ लो, ये देखो, बिलेनियर विंस, बिलेनियर। अभी दिख रहा है आपको कि कितना ज़्यादा हम लोग पीछे पीछे प्रोसेसिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ये सारे वर्ड्स इसने क्या करे, ये क्या है? बाईग्राम्स है? नहीं है, ये सब बाईग्राम दिख रहे हैं आपको, और यूनिग्राम भी दिखेंगे यहाँ पे। ये देखो यूनिग्राम, ये रहा, बैचलर्स, बैचमैन, बैचमैन बुक, बैकग्राउंड, बैकस्टेज। तो ये सारे जो हैं इसके यूनिग्राम और बाईग्राम बनते जा रहे हैं, और देखो कितने सारे बने हैं।
ठीक है, समझ गए ये? अगर मैं बाईग्राम की जगह उसको यूनिग्राम कर दूंगा तो और वर्ड यहाँ से हट जाएंगे। बट एनीवेज यहाँ पे ये टोकन आप देखो कितने सारे छोटे 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 वर्ड्स में इसने तोड़ दिए सारे टाइटल्स को, और देन इस टाइटल के बेसिस पे वो मैचिंग करता जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। ठीक है, अभी क्लियर हो गया? ठीक है, अभी ये हमने क्या करा है कि स्ट्रिंग्स निकाली है वर्ड्स की, मतलब जो भी हमारे पास टाइटल थे उसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। अब ये जो हमारे पास है इस वर्ड जब ये हम देखते हैं तो आपको मैंने बताया था कि थोड़ा सा उसके अंदर से और प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता है। थोड़ा प्री प्रोसेसिंग और करना है कि हमने क्या करा, टाइटल लिया, टाइटल को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, फिर उसके अंदर क्या करा हमने कि उसके अंदर से ये जो भी हमारे वर्ड्स थे जिसमें नहीं रहेंगे, टाइटल वाले नहीं हैं, वो सब हटाते जा रहे हैं इसमें से, है ना। तो वो सब हम लोग इसमें से रिमूव करते जा रहे हैं। ये थोड़ा सा लंबा टाइम रहता है, मतलब हम लोग क्या करते जा रहे हैं ना, ये जो पूरा सेंटेंस है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एक वर्ड उठाया, जैसे ये उठाया, और ये वर्ड उठा के जितने भी हमारे टाइटल्स थे उन सभी टाइटल्स के ऊपर रन करके देखते हैं कि भाई ये कितनी बार आया है उसमें। अभी समझे? तो उससे मेरे पास काउंटिंग मिल जाएगी कि दिस वर्ड इज अकरिंग 10 टाइम, दिस वर्ड इज अकरिंग 20 टाइम, दिस वर्ड इज अकरिंग इन नंबर ऑफ टाइम इन द ऑल गिवन टाइटल्स। मेरे पास 10,000 टाइटल है, तो उन 10,000 टाइटल में कौन सा वर्ड कितनी बार आया है वो मुझे पता चल जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी मुझे पता चल जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, तो उसके लिए मैंने एक लूप लगाया है। फीचर्स मतलब क्या था, तो फीचर्स मतलब ये था, ये मेरे पास फीचर्स है। ठीक है, ये मेरे पास फीचर्स है। जैसे लेंथ ऑफ फीचर चला के देखोगे तो यहाँ पे क्या है, फीचर इज नॉट डिफाइंड, नेम फीचर इज नॉट डिफाइंड। फीचर क्यों डिफाइंड नहीं हुई, कहाँ पे हम लोगों ने फीचर मिस किया है? गेट फीचर नेम, प्रिंट गेट फीचर नेम, फीचर्स हम लोगों ने मिस किया है कहीं पे। अच्छा, ये टाइम भी काफी लेता है इसलिए मैंने उसको निकाल दिया था। बट ये क्या करता है, तो फीचर्स मतलब क्या हुआ, तो फीचर्स मतलब हम लोगों ने यहाँ से जो वर्ड्स थे ना उनको फीचर बोला था, उसको मैंने एक अलग वेरिएबल में सेव किया था, बाद में निकाल दिया क्योंकि ये लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम लेता है रन होने के लिए। तो मैंने बोला इतना टाइम अभी आप लोग इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि दैट इज जस्ट अ काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन कि उसमें मैं दिखाता था कि कितने वर्ड कितनी बार आते थे। बट आप ये जब रन करोगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा, जिसमें क्या होगा कि ये दिखाएगा कि ये वर्ड जो है 50 बार आ रहा है, ये वर्ड जो है 100 बार आ रहा है, ये 500 बार आ रहा है, ये 1000 बार आ रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो वो हमारे पास इस लूप से पता चलता है कि जिसके अंदर एक लूप चला रहे हैं हम लोग, और फिर उस लूप के अंदर हम क्या करते जा रहे हैं कि ये जो एक एक करके वर्ड उठा रहे हैं फीचर में से, वो जो एक एक वर्ड है उसको हम लोग टाइटल में ढूंढ रहे हैं, टाइटल में ढूंढ रहे हैं कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। ये बी और ये बी का मतलब एनी नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर एंड आफ्टर, अगर इसके ऊपर आता है तो वो अवेलेबल है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, अवेलेबल नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, ऐसा है। तो वो बहुत लंबा टाइम लेता है इसलिए मैंने उसको रन नहीं किया था ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कोसाइन सिमिलैरिटी जो मैंने बताया था कि जो मेरे पास जितने भी फीचर्स थे, जितने भी वर्ड्स थे, उनकी कोसाइन सिमिलैरिटी निकालती कि वो एक दूसरे से कितना क्लोज है, वो एक दूसरे के कितना पास है। तो कोसाइन सिमिलैरिटी के लिए मेरे पास sklearn में से कोसाइन सिमिलैरिटी नाम का मैंने फंक्शन इंपोर्ट किया, और फंक्शन इंपोर्ट करने के बाद अब देखना यहाँ पे कोसाइन सिमिलैरिटी मतलब सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। किसके बीच में सिमिलैरिटी ढूंढ रहे हो आप लोग? सिमिलैरिटी किस किस की ढूंढनी है? तो अगर आपने जो भी टाइटल डाला है, अभी हम लोग सर्च स्ट्रिंग नहीं डाल रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अपना जो सर्च का बटन होता है नेटफ्लिक्स वगैरह पे या कहीं पे भी आपको मूवी सर्च करना, तो एक सर्च का बटन होता है, और उस सर्च के बटन, ये जो ऐसा सर्च का बटन होता है, तो यहाँ पे आप अपना सर्च डालते हैं कि जो भी है, किल मी इफ यू कैन, ऐसा करके मूवी का नाम डाला आपने, और उस नाम के बेसिस पे फिर जो डेटाबेस रहता है उसके अंदर सारी मूवीज पे सर्चिंग लगती है। नॉर्मली ऐसा होता है। अब मेरे पास ये सर्च का बटन नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पहली वाली मूवी उठा रहा हूँ और उसके बेसिस पे ही उसको सबसे मैच करके देख रहा हूँ कि इससे क्लोजर मूवी कौन कौन सी है। अदरवाइज आई कुड हैव एडिशनल स्टेटमेंट हियर, यहाँ पे मैं अलग से एक स्टेटमेंट ले सकता था और उसके अंदर मैं सर्च का जो भी था वो डालता था, और उस सर्च के बेसिस पे उससे मिलती जुलती कितनी मूवी है वो निकाल के ले आता था। बट वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे शॉर्ट करने के चक्कर में मैंने क्या किया है कि मैंने सर्च वाली फंक्शनलिटी नहीं डाली है, उसकी जगह मैंने क्या देखा कि इस मूवी से मिलती जुलती कितनी मूवीज हैं। मतलब अज्यूम करो कि जो पहला वाला जो भी हमारा मूवी है वो मैंने सर्च स्ट्रिंग डाला है, तो उस सर्च स्ट्रिंग से मिलती जुलती कितनी सर्च स्ट्रिंग है वो निकाल के लानी। ठीक है, क्लियर हुआ आइडिया क्या है यहाँ पे? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि
टाइटल ऑफ मूवीज जो है उससे टाइटल ऑफ मूवीज को वापस से मैच कर रहे हैं। मतलब क्या होगा यहाँ पे कि हर एक टाइटल जो रहेगा, पहला टाइटल आया, उस टाइटल से जो बची खुची, टोटल हमारे पास 10,000 मूवीज हैं, तो उन 10,000 में से पहली एक मूवी आपने निकाली, वो मूवी अगेंस्ट 9,999 मूवीज से कंपेयर होगी, और हम उसमें से जितनी भी मैचिंग मूवीज है और सिमिलर मूवीज है वो निकाल के ले आएंगे। फिर दूसरी मूवी है उसको फिर हम लोग बाकी सबसे कंपेयर करें। ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और उससे हम लोग एक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पहली मूवी से मैच होती है कितनी सारी मूवी हमारे पास है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा, कोसाइन सिमिलैरिटी लगाई, उसके अंदर पहला भी टाइटल डाला और दूसरा भी टाइटल मैट्रिक्स डाला, मतलब टाइटल को टाइटल से मैच कर रहे हैं, उससे हमारे पास सिमिलैरिटी टाइटल मिल जाएगा। ये मिल गया। अभी आप देखोगे तो 10,000 मूवीज को 10,000 मूवीज से कंपेयर किया, मतलब अभी हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा। उस मैट्रिक्स में हमारे पास पहली मूवी आई, मूवी नंबर 1, और वो जो मूवी नंबर 1 थी हमारे पास मे बी हैरी पॉटर एंड सोरेसियस स्टोन या जो भी नाम है उसका, तो मूवी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये यहाँ पे रहेगी। सेम मूवीज यहाँ पे भी होगी, है ना। और ये जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें हम लोग बताने की कोशिश करेंगे कि मूवी नंबर 1 से मैचिंग कौन सी मूवीज यहाँ पर और है। तो मूवी नंबर 1 से मैचिंग ऑफ कोर्स वाली तो 100% मैच होगी क्योंकि सेम मूवी है, बट उससे अगला क्लोज्ड मैच मूवी कौन सी है, सपोज ये वाली मूवी अगली क्लोज्ड मैच मूवी है, देन अगली क्लोज्ड मैच मूवी ये है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ऐसा हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। तो उससे हम क्या करेंगे कि ये वाली मूवी उठाएंगे और इससे मैच होती हुई टॉप 5, टॉप 10 या जितनी भी आपको मूवीज चाहिए वो आपके पास रिकमेंडेशन में आ जाएगी। क्लियर? तो वही मैट्रिक्स हमने यहाँ पे बनाया है, और उसमें मैट्रिक्स में आप देखोगे तो उसका शेप है 10,000 क्रॉस 10,000, मतलब 10,000 मूवी लेफ्ट में, 10,000 मूवीज टॉप में। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया है। अभी इसको देखना है तो यही जो मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स में टॉप 200 मूवीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये है, ये देखो यहाँ पे कुछ कुछ हमारे पास अप्रॉक्सीमेट मैच आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमने सारी रो ली है बट 200 कॉलम्स लिए, तो पहले 200 में मैचिंग आ गई है। एनीवेज यहाँ से मैं दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। अब ये जो मूवीज़ की जो रिकमेंडेशन आई है कि पहली मूवी से मिलती जुलती कौन कौन सी, उनको हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं ताकि जो टॉप 10 मूवी है जो भी मैच होती है वो हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो हम लोग क्या करा, np.arg sort, आर्ग्यूमेंट सॉर्ट, मतलब नंपाई में से आर्ग्यूमेंट सॉर्ट किए ने, मोस्ट मैच मूवी, देन थोड़ा सा लेस मैच मूवी, देन उससे थोड़ा लेस मैच मूवी एंड सो ऑन। तो पहली मूवी उठाई और उससे जो है मैच होती हुई थोड़ी थोड़ी मूवी हम लोग सॉर्ट कर दिए हैं। सॉर्ट करने के बाद टाइटल आईडी हमने उठाया 5, टाइटल आईडी 5 मतलब टाइटल आईडी 5 पर हमारे पास कौन सी मूवी हम लोग ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो टाइटल आईडी 5 पर हमारे पास है ये वाली मूवी, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। ठीक है, अब इस द फॉल्ट इन आवर स्टार है, ये जो मूवी है इस मूवी से मिलती हुई कितनी हमारे पास अलग अलग टॉप 10 मूवी है वो बताते हैं। तो np.flip आर्क सॉर्ट मतलब सॉर्ट कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन कोसाइन सिमिलैरिटी डाल रहे हैं, टाइटल आईडी डाला, तो टाइटल आईडी हमारे पास क्या है 5, तो 5 टाइटल आईडी 5 मतलब इस वाली मूवी से मिलती जुलती जितनी भी मूवीज है, कितनी मूवी है टॉप 10 0 to 10 ये हमको निकाल के लानी, मूवी नहीं सॉरी बुक है, तो टॉप 10 बुक हमको निकाल के लानी है। तो ये टॉप 10 बुक हैं जो इससे मिलती जुलती है, मतलब पहला टाइटल आईडी 5 से 100% मैच जो बुक होती है वो टाइटल आईडी 5 ही होती है। ऑफ कोर्स सेम टाइटल रहेगा तो वो तो मैप होगा, बट बाकी जो नेक्स्ट क्लोज्ड मैच हमारे पास बुक्स हैं वो ये वाली जो बुक्स हैं ये नेक्स्ट क्लोजेस्ट मैच हैं इससे। ठीक है, बट ये तो नंबर है बुक के नंबर हमको नहीं चाहिए, उनके नाम चाहिए। तो नाम चाहिए तो हमने क्या करा, ये टाइटल आईडी और उसके बाद यहाँ पे नाम लिख दिया, उसका नेम लेने की कोशिश करिए। तो ये देखो ये इससे मैच होता हुआ आया है और यहाँ से इसका नेम आ जाएगा हमारे पास मैचिंग बुक्स का। तो पहला हमने जो डाला था द फॉल्ट इन आवर स्टार, द फॉल्ट इन आवर स्टार से फर्स्ट मैचिंग हमारे पास क्या है, द फॉल्ट इन आवर स्टार। ऑफ कोर्स सेम मूवी सेम बुक रहेगी वो तो 100% मैच होगी, बट दूसरी जो मैचिंग है वो कौन सी है, एजेंट टू द स्टार्स। थर्ड है नंबर द स्टार्स। फोर्थ है द फुल डार्क नो स्टार्स, द स्टार्स माई डेस्टिनेशंस। Then it had to be you, Chicago Stars, City and the Stars, The Stars Shine Down, The Dog Stars, The Broken Stars। ये हमारे पास सारी मैचिंग मूवी मैचिंग बुक्स आ गई है इससे रिलेटेड, राइट। इसी तरह से अगर प्ले करते हो आप, सपोज टाइटल नंबर 3 लेते हैं विच इज
टू किल द मॉकिंग बर्ड। अभी इसको देखते हैं कि इससे मैचिंग कितने हमारे पास अलग अलग बुक्स आ रही है। टॉप 10 बुक क्या है इससे मैचिंग। द टू किल मॉकिंग बर्ड, तो टू किल मॉकिंग बर्ड 100% मैचिंग है इसके साथ। बट किल मी इफ यू कैन, मॉकिंग बर्ड, अ टाइम टू किल, ऑल यू नीड इज किल, फर्स्ट टू किल, द किल ऑर्डर, द किल आर्टिस्ट, किल शॉट, कंसेंट टू किल एंड सो ऑन। ये टॉप 10 मूवी हमारे टॉप 10 बुक्स आ गई जो मैचिंग है। क्लियर? और भी आपको देखना है, यू कैन प्ले विथ इट, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कोड कर दो। अगला मैंने टाइटल लिया है हैरी पॉटर एंड द सोरेसिस स्टोन। तो चलो उससे देखते हैं मैचिंग कौन कौन से हमारे पास सारी बुक्स। तो हैरी पॉटर एंड सोरेसिस स्टोन से हैरी पॉटर एंड सोरेसिस स्टोन तो मैच होगा, बट हैरी पॉटर बॉक्स सेट, द हैरी पॉटर कलेक्शन, द हैरी पॉटर कलेक्शन, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर, हैरी पॉटर एंड ऑर्डर ऑफ फिनिक्स, हैरी पॉटर एंड ऑर्डर ऑफ समथिंग, ये हमारे पास सब मैच आ रही है। अगर आपको टॉप 10 नहीं मैच करनी, टॉप 15 मैच करनी, तो वो भी कर सकते हो। ये 15 यहाँ पे डाला एंड टॉप 15 आ गई। ये सारी टॉप 15 मूवीज आ गई मैचिंग की, टॉप 15 बुक्स आ गई मैचिंग की। कुछ भी आप यहाँ पे टाइटल डालो, लेट्स से 7 नंबर। सो 7 नंबर इज द कैचर इन द रेस, उससे पता नहीं क्या मैच हो गया आएगा। द कैचर इन द रेस, हैम ऑन रेस, पॉकेट फुल ऑफ राई और समथिंग, ये हमारे पास टॉप 15 मैचिंग हो गया। ठीक है, अभी एक और मजेदार बात यहाँ पे देखो, अनहोली आया है। अनहोली क्या मैचिंग है? नहीं है, बट आपने चूंकि टॉप 15 डाला था और यहाँ पे आप देखो तो स्कोर, इसका मैच स्कोर है 0, फिर भी ये रिकमेंड तो करेगा ही क्योंकि आपने टॉप 15 डाल दिया है। तो भले ही वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, 0 वाले उसने पकड़ के ले आया है, बट मैचिंग तो ओनली टॉप 3 ही हो रहे हैं, मतलब यही सिर्फ मैचिंग है इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप रिकमेंड करो तो एक स्कोर और डाल सकते हो कि हु आर ग्रेटर देन 0 इन द मैच, तो आपके पास और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा लेस सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, इसको और बहुत ज़्यादा रिफाइन कर सकते हो आप टू गेट अ वेरी गुड रिकमेंडेशन सिस्टम। क्लियर? एनी डाउट हियर? सर ये जो सर इसमें हम जॉनर भी तो बोलिए सर, ये जो 0 मैच हो रहे हैं उनमें ये कैसा ऑर्डर देता है? रैंडम ऑर्डर रहता है क्या? हाँ, ये रैंडम ऑर्डर रहता है, तो दैट्स व्हाई यू कैन पुट अ कंडीशन कि यहाँ पे हमको जो भी शो कर रहे हो ना वो 0 से बड़ा ही शो करो मैचिंग में। 0 मतलब तो फिर कोई मैच ही नहीं हो, तो फिर उसने कुछ भी उठा के दे दिया है। ओके सर। है ना? सर ये प्रॉपर रिकमेंडेशन सिस्टम, मतलब ये तो वो होगा कि ठीक है हमने अकॉर्डिंग टू वर्ड्स जो मैचिंग वर्ड्स हो गए वो हो गया। ये रिकमेंडेशन प्रॉपर थोड़ी हुआ जब तक, मतलब जैसे अगर हमने इसमें जॉनर जैसे इंक्लूड करा तो उसको कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अभी क्या होता है ना कि ये तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि जो भी रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं। वो जैसे हम लोग यहाँ पे 1 या 2 में सेशन में डिस्कस कर रहे हैं वैसा तो होता नहीं है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, पूरे की पूरी कंपनीज उसके ऊपर वर्क करती है, तो उसमें क्या होता है कि हाइब्रिड सिस्टम्स बनते जाते हैं एक के बाद एक। मतलब उसमें आप पॉपुलैरिटी बेस भी डाल दोगे, उसमें आप कंटेंट बेस भी डालोगे, उसमें कोलैबोरेटिव भी डालोगे, उसके अंदर आप बोल्ट्जमैन मशीन वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहती है वो डालते जाते हो और कंबाइन करके फिर नया सिस्टम बनाते हो, तो हाइब्रिड होता है उसके अंदर। अभी यहाँ पे जो मैचिंग है वो भी मैंने बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं ली है क्योंकि कंट्रोल बहुत ज़्यादा मैंने ट्यून नहीं करे आपके सामने। यहाँ पे आप इसको कंट्रोल्स को ट्यून करोगे तो भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, तो वो आपके साथ आपको करना रहेगा थोड़ा सा। ये जो काउंट वेक्टराइजर में जो कंट्रोल्स है इसको भी ट्यून करना पड़ेगा कि ये जो बाईग्राम है उसकी जगह ट्राईग्राम ले लो, ये वाली जो चीज़ें रहती है इसको चेंज कर करके आप रिकमेंडेशन में चेंजेस देख सकते हैं, तो फर्दर ट्यूनिंग होती है उसकी। ठीक है, तो वो मैच्योर होता है धीरे धीरे करके टेस्ट होते हैं। सर बायग्राम ये एनग्राम का भी कि अपने अपने मतलब राइटिंग स्किल्स होते हैं, सो अपन कितने तक ले सकते हैं पॉसिबली? जैसे कोई अगर किसी को कोई बोले कि आई डोंट लाइक समथिंग को कोई एक्सपैंड करके लिखे तो ही कैन आल्सो राइट इट इन अ 10 वर्डेड सेंटेंस। सो इट्स अप टू यू ना। अगेन वो क्या होता है ना, यू हैव टू मेजर द रिलेटेड एक्यूरेसी कि आपने पहला बाईग्राम बना के देखा, देन कैलकुलेट द एक्यूरेसी, मतलब वो ये भी टेस्ट वगैरह किया और रिकमेंडेशन उसकी बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो पहले आप कंट्रोल्ड ऑडियंस के सामने वो डालते हैं कि ये बराबर रिकमेंडेशन आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर आप खुद ही पहले देखते हो कि अरे भाई ये बराबर दे रहा है नहीं दे रहा है। यहीं पे आपको एरर्स पकड़ में आ जाते हैं कि ये तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा है फिर भी दिखा रहा है। तो इस तरह के जो कंट्रोल रहते हैं, कई बार आपको बराबर मैच होते हुए भी दिख रहा है वो सिमिलरिटी वाइज, और मैच हो रहा है बट वो समहाउ जस्ट कैसे तो भी मैच हो रहा है, मतलब वो बराबर मैच नहीं हो रहा है, तो देन यू काइंड ऑफ रिफाइन इट ऑन योर ओन। आपका टेस्टिंग टीम भी होता है उसके अंदर, तो टेस्टिंग टीम ट्राई करता है, मैच करता है,
इफ दे आर सेटिस्फाइड तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाइड है तो वो बोल देंगे बराबर मैच नहीं हो रहा, तो देन यू हैव टू अगेन रीट्यून इट, कि वो बाइक की जगह ट्राईग्राम लगा दो, मैक्स टीएफ की जगह मिन डीएफ लगाओ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसी चीजें आपको एक्सपेरिमेंट करनी पड़ती है। ओके सर, थैंक यू। बहुत सारे इसमें नॉब होते हैं, इसको नॉब बोलते हैं, वो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग बोलते हैं या नॉब बोलते हैं। तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग आप करो, उसके अंदर काम करते जाएंगे तो वो सो जाता है। ठीक है, ओके, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? और कोई क्वेश्चन? सो दिस वाज आवर कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। ठीक है, इसके हम लोगों ने एक बहुत अच्छा स्टार्ट किया है। नाउ यू कैन ग्रो इट। इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल है, बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, यू शुड एक्सप्लोर देम, और उसके बेसिस पे यू कैन डिराइव योर ओन रिकमेंडेशन सिस्टम, यू कैन कम अप विथ योर ओन प्रोजेक्ट। अभी हमारे पास लगभग 1.5 वीक का टाइम है। ठीक है, सो इन दैट 1.5 वीक एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव क्रिएटेड देयर ग्रुप्स, so that's wonderful to see enthusiasm in all of you 60 people। बहुत सारे लोगों के ग्रुप बन गए हैं, जिन लोगों के रह गए हैं एक दो कुछ लोग, वो अपने ग्रुप फाइनलाइज करें एंड नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट विद द फुल एनर्जी। ठीक है, यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 1.5 वीक्स टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं इन सब चीज़ों के अंदर में। आपको ये पाइथन का जैसा जो प्रोग्राम है दैट इज़ द कंप्लीट प्रोजेक्ट। तो ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है, उसको वेल आर्टिकुलेट करो इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड द प्रेजेंटेशन एंड देन प्रेजेंट इट। ठीक है, बीच में अब यहाँ पे हम लोग एडिशनल चीज़ें रोकेंगे, मतलब कंटेंट जो आपका सेशंस थे वो हम लोग यहाँ पे फिनिश करेंगे। द ओनली फ्यू थिंग्स विच आर गोइंग टू कम अप इन नेक्स्ट 1 or 2 days इज गोइंग टू बी योर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो कल आपका एक सेशन और होगा विच इज़ गोइंग टू बी ऑन डेटा विजुअलाइजेशन पोर्शन। तो प्रॉबेबली उसके ऊपर एक सेशन और हम लोग रखेंगे। निशांत सर इज गोइंग टू टेक इट अहेड। ठीक है, उसमें ही इज गोइंग टू शो यू अबाउट सीबॉर्न एंड मैटप्लॉटलिब, अदर लाइब्रेरीज एंड ऑल। तो वो एक सेशन हो सकता है। ठीक है, जो भी होगा आपको कम्युनिकेट कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, बट वी वांट टू गिव यू टाइम टू गेट टुगेदर एज अ ग्रुप, वर्क एज अ यूनिट, और देन यू हैव टू प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन। नाउ टाइमलाइंस मैंने आप लोगों के सामने पब्लिश कर दी है। यू हैव टू स्टार्ट प्रेजेंटिंग योर प्रोजेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 12th। ठीक है, 12th का मैंने टाइम दिया है, तो 12th से हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट्स के। एंड ऑन वन पर्टिकुलर डे वी आर गोइंग टू कॉल आउट 1 or 2 ग्रुप्स, 1 या 2 ग्रुप के फॉर्म में, 2 या 3 ग्रुप जो भी रहेगा, जितना टाइम रहता है, तो उसके बेसिस पे रेंडमली आपका नाम, आपके ग्रुप का नाम कॉल होगा। रेंडमली एज इन आपको बता दिया जाएगा कि दिस डे इज योर्स प्रेजेंटेशन, दिस डे इज ग्रुप नंबर 1 or 2 और वट एवर जो भी है वो आपके उस पर दिखा दिया जाएगा। एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर दैट, you will be given a date कि 12th को आपका नाम है, 13 को आपका ग्रुप है, देन 16 को किसी और का है, एंड 17 को किसी और का ग्रुप है। तो इस तरह से आपको ग्रुप का डेट मिल जाएगा। इट इज गोइंग टू बी, जो भी रहेगा डेट्स वो सून आपको मिल जाएगा। मे बी बाय 9th वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिक्लेयरिंग कि 12th को किसका प्रेजेंटेशन होगा एंड 13 को किसका होगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन इट यू हैव टू प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद स्टिल यू विल बी हैविंग अराउंड, इफ यू आर प्रेजेंटिंग ऑन 12th, तो सबमिशन जो रहेगा वो 17 को है। तो अगर 12th का आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है तो स्टिल यू आर गोइंग टू हैव 4-5 days टू फिनिश अप और रैप अप द लास्ट गार्निशिंग पोर्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट। 17 तक आपको आपका प्रोजेक्ट सबमिट करना है। वंस यू सबमिट द प्रोजेक्ट, देन वी आर गोइंग टू कॉल दिस एंटायर प्रोग्राम एज अ completed one. Okay, and then जो भी आपका बाकी का प्रोसेसिंग है, सर्टिफिकेशन एंड अदर थिंग्स, दे आर गोइंग टू गेट प्रोसेस्ड। ऑलराइट, अभी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इट। Okay, so just the only thing which might have happened, it is not 100% going to happen or something, आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे बता देंगे, is about data visualization. Otherwise we are done with the presentation part in the entire session. Now you have to work on your projects with your corresponding groups. ठीक है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, अगर कुछ डाउट क्लियरिंग वगैरह करवानी है या कुछ डाउट्स आ रहे हैं किसी चीज में, देन यू कैन गेट इन टच विद मिस्टर बलजीत। ही इज गोइंग टू अरेंज फॉर सम एडिशनल सेशंस फॉर यू, for a close group or maybe for 5 people or whatever it may be. Okay, but you have to then come up with it as a kind of problem, so we can arrange for additional something for you. Okay guys, any other thing? Okay, so if there is no question, so thank you all.
and have a good day, and thank you for being a wonderful audience. Okay, so we are going to meet again at project presentation. I will be taking it ahead. I will be taking your presentation. So thank you all and have a good night. Thank you. Thank you, sir.